Rog Nidan Department, our respected guest of honor, Dr. Aparna Pathak ma'am, and our respected professors present here. I would like to request HOD sir and our chief guest to kindly come and light up the lamp. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I would like to request everyone to join the Wagbat batch girls for Dhanvantri Vandana. पंच प्रपंचात्मक देव संपादितं नमामिदल्पन्तरिमादिदेवम् नवीननीलपुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेकादशवाक्यमूर्तिम् पूर्णीशतां सुमनोरथा नमामिदल्पन्तरिमादिदेवम्. Thank you, girls. I would like to invite HOD Gopi sir to come up and felicitate our guest of honor with the memento. Currently, ma'am is the assistant professor in the Department of Psychology at Dayanand Eglo Vedic College, Shivan. Ma'am completed her PG and PhD from Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, Gorakhpur. The area of her research includes stress, coping, etc. Ma'am has great teaching experiences. Along with this, ma'am attended many workshops. Not only this, ma'am had published many papers and book chapters. Ma'am had been the secretary of the seminars conducted in BAV College Shivan
Ma'am is the life member of Indian Academy of Applied Psychology. Ma'am had been awarded with the IPA President's Gold Medal Award of Excellence in Psychology by Indian Psychological Association in the year 2018. I'm very much delighted to call Ma'am to take up the stage and guide us and motivate us for our better future. Thank you very much. What's your name? Khushi. Thank you very much, Khushi. Respected sir, ma'am, and doctors, future doctors. मैं यहाँ you're comfortable in English और हिंदी? हिंदी भी है ना? So I'm here not for some boring lecture. It's more of discussion. ठीक है? अभी आपको लगेगा कि ये लेक्चर देंगी, but after few minutes you will feel that it's more from you rather than me. Okay? So we'll talk about your general health, your style of living, your style of daily activities. What we're going to talk about is physical and mental food. Okay. Physical food habits. सबसे पहले what I want to include is our breath, सांसें हमारी. Okay, no issues. We'll talk. Air, about the air. Okay, we'll talk about air, what we breathe, our food, then our mental health, the interconnection. So firstly, air, सांसें. The air, what we breathe in is different for different people. For us, it is just normal thing. But it also depends. It is connected with our emotions. Okay? When we are happy, we are breathing normally. When we are angry, then है ना? तो जो हमारी सांसें हैं वो तेज हो जाती हैं, है ना? गुस्से में सांस ले रहे हैं तो बताऊंगा कल तुम्हें मिलूंगा तो. Then if we are sad, when we are sad, the breath, मतलब जो भी हम सांसें ले रहे हैं वो डीप हो जाती हैं, ठीक है, लॉन्ग हो जाती हैं. मोस्ट ऑफ द बॉडी, हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारा ब्रेन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आवर एयर, जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है. उसी को हम नजरअंदाज कर देते हैं. आपको यहाँ रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन कराते होंगे, वीकली कराते होंगे. चलो, नहीं कराते होंगे खुद करो. ये शुरू कहाँ से होता है? सांसें कहाँ से शुरू होते हैं? यस, एक कोई बोलो.
लाइफ कहाँ से शुरू होती है, पहली बार सांस कहाँ से लेते हैं? ठीक, पैदा होते हैं तो नहीं, उससे पहले से प्रीनेटल पीरियड, माँ के गर्भ से कब से सांसें चल रहे हैं, और वो हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? जो चीज पैदा नहीं हुए उससे पहले से चल रही है, उसको हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं. If you are taking care of your breath, of the air, तो आपको मैक्सिमम बीमारियां होंगी ही नहीं. कोरोना में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही, कोविड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी सांसें ही कर रही थी ना. उस टाइम भी कहा गया कि डीप ब्रीथिंग करो, हमें घबराहट होती है, क्या कहते हैं, डीप ब्रीथिंग करो, स्ट्रेस में होते हैं, डीप ब्रीथिंग करो, है ना. आई विल कंटिन्यू विद द स्टोरी. आई एम फेमस फॉर माई स्टोरीज. एक बार क्या हुआ, देयर वाज अ वाइज मैन, बहुत पहुंचे हुए साधु संत थे. एक बच्चा गया उनके पास, वो बोला, उनका शिष्य था, बोला कि ये एयर है क्या, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है जो हम खाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं वो ज्यादा, वो हमारी फ्यूचर लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एयर क्यों इंपॉर्टेंट है? जी तो सबको ही रहा है, वो तो ऑटोमेटिक है, रिफ्लेक्स है हमारा. तो वो जो संत थे साधु, उन्होंने कहा कल तुम सवेरे आना नदी के किनारे, वहां पे पीसफुल रहेगा, वहां मैं समझाऊंगा. ये बच्चा जाता है, वो साधु क्या करते हैं, आओ बेटा बैठते हैं, ब्रिज होती है, क्रॉस करके जाना होता है रिवर से. वो क्या करते हैं, उस ब्रिज पे खुद भी कूदते हैं नदी में, और बच्चे को ले, बच्चे का सिर वो कुछ देर पानी में डुबा के रखते हैं, फिर निकालते हैं, ऐसे रहता है वो. ठीक, फिर कुछ देर, ज्यादा देर तक, इतनी देर तक कि बस भाई अब लास्ट मिनट है, सांस लेना अब जरूरी. फिर वो उसको ऊपर ले आते हैं और शोर पे ले जाते हैं, किनारे नदी. फिर उससे पूछते हैं अब तुमको क्या लगा, एयर के बारे में अब तुम्हारे क्या विचार है? तो बोला आपने तो आज मुझे मार ही डाला था. नहीं, तुम विचार बताओ अब. तो उस बच्चे ने कहा आज मुझे लगा कि आज मुझे एयर नहीं मिलती तो आज मेरी जान निकल जाती. तो वो बोले ये है एयर की इंपॉर्टेंस. जो तुम खा रहे हो 24 घंटे नहीं खाओगे जिंदा रह जाओगे, जो तुम पढ़ रहे हो 2 साल और टाल सकते हो, लेकिन जो तुम सांस ले रहे हो 2 मिनट उसके बगैर नहीं रह सकते. तो अपनी सांसों को पहचानो. तो जब भी आप लोगों में से कई लोग क्लास के लिए लेट हो जाएंगे, गेट्स बंद हो जाएंगे, अब क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक है, तो जीने का एक रीजन डेवलप करो. जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तबीयत खराब होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो तबीयत खराब होनी है. उस टाइम फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन द मॉर्निंग इज वेक अप एंड थिंक अबाउट योर बॉडी. फर्स्ट थिंग इज योर ब्रेथ, व्हाट यू ब्रीथ, सांसें. सो सिट, कहीं भी बैठना हल्की पलथी और इस पोजीशन में उस पोजीशन में कुछ नहीं, जहां बैठो जस्ट इनहेल और वो सांसें महसूस करो कहाँ जा रही हैं. ठीक है, आपके नेक के होते हुए चेस्ट, लंग्स, एक एक बॉडी ऑर्गन को विजुअलाइज करो माइंड में कहाँ जा रही है. ठीक है, ऐसे 4-5 बार आप करोगे इनहेल एक्सहेल, तो आप देखोगे कि ये जो इरेगुलरिटी है आपके सांसों में, ये रेगुलर हो जाएगा. ठीक है, देन यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है, वो किससे मिलता है, एयर.
तो जब ये रेगुलर हो जाएगा तो नर्वस सिस्टम हमारा, जहां बहुत ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो फंक्शन करेगा प्रॉपरली, वहां पे आपको फ्रेशनेस फील होगा। तो स्टार्ट योर डे विद just counting and just paying attention to what are you breathing. I'm not talking about the quality of air या कहीं और pollution है, कहाँ सांस लें, just जो सांस ले रहे हैं उस पर कंसेंट्रेट कर। Okay, so it's deeply connected with your mood. It stabilizes your mood also. फिजिकली जो हमें फिट कर रहा है वो तो कर ही रहा है, स्ट्रेस में आप अपने बॉडी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप अपने सांसों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपके इमोशंस को रेगुलेट कर रहा है। फॉर अ मोमेंट आपको आपके जो भी स्ट्रेस है उससे ये बाहर लाएगा। जब दिमाग क्लियर रहेगा ये एक्सरसाइज करने के बाद, तब हाँ ठीक है, अभी हमें यहाँ पहुंचना है, इतनी जल्दी कैसे पहुंचे, दिस इज द वे आउट। उस टाइम माइंड हमारा सोचेगा अच्छा दिस इज द वे आउट। तो सांस की ये इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू ब्रीथ। ओके, देन फूड। फूड क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ भी खा लो कुछ नहीं होगा, है ना। ईटिंग हैबिट्स, आपको लगता है आपकी एज में मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, हम तो कुछ भी डाइजेस्ट कर ले जाएंगे, और अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, ये लगता है ना। सो चीट करते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, है ना। ठीक है, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट अगर आप रोज बाहर का खाना खा रहे हैं, वो आप देख तो नहीं रहे हैं बनते बनते हुए, देखो तब तो ठीक है। नहीं देख रहे हो बनते हुए तो क्या पता है कि आपको क्या मिल रहा है। घर पे है तो ऑब्वियसली आपके हेल्थ के बारे में सोचा जाएगा, आपको हेल्दी चीज दी जाएगी, वही चीज घर बना के खा लो। पे अटेंशन टू योर फूड। जो भी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हो, एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचो, रेसिपी के बारे में सोचो, कैसे बना होगा, इसमें क्या क्या लगा है। अच्छा बन है, तो ये कैसे बनता है, अच्छा इतना फर्मेंट करना पड़ता है, इतनी अनहेल्दी बैक्टीरिया, ठीक है, ये वेजिटेबल्स हैं प्रॉपर वॉश किए गए हैं नहीं किए गए हैं, शेल्फ लाइफ कैसे इतनी ज्यादा हो जाती है कुछ फूड की, मतलब शेल्फ लाइफ मतलब दुकानों में रखा रहता है प्रिजर्वेटिव्स डाल के बहुत लंबे पीरियड तक, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, एक्सपायरी डेट, क्यों भाई कैसे इतना लंबा हो गया। हम घर में बनाते हैं, सुबह बनाया अगले मॉर्निंग तो वो खाने ही लायक नहीं रह जाएगा, रोटियां भी सूख जाती हैं शाम तक। तो क्यों शेल्फ लाइफ इतनी, दुकानों में इतनी देर देर तक पड़े रहते हैं। तो वट एवर यू आर ईटिंग, एक बार उसको सोचो क्या क्या है इसमें इंग्रेडिएंट, और वो कैसे बना होगा, उसको गूगल करो। आज तो आपके पास सब कुछ है, गूगल कर लो तुरंत, कैसे बना होगा, कितनी देर इसको फर्मेंट किया गया होगा, हेल्दी बैक्टीरिया है अनहेल्दी बैक्टीरिया है। ओके, ये अपने फूड पे कंसंट्रेट करो, उसके इंग्रेडिएंट्स पे कंसंट्रेट करो, एंड व्हेन यू ईट ईट, व्हेन यू वॉक वॉक, जो मोमेंट है उसमें जियो। व्हेन यू स्लीपिंग स्लीप, छोड़ दो दुनिया भर की बातें, फोन ऑफ करो, दरवाजा बंद करो, सब कुछ। व्हेन यू स्लीपिंग स्लीप, स्लीप लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, कुछ बच्चों को कितना भी हिलाओ, घोड़े बेच के सोते हैं, नहीं उठेंगे, है ना। सुबह उठाओ बच्चों को, देखो 5 मिनट और 5 मिनट और, है ना, तो वो एकदम बेफिक्र नींद, वैसे ही सो। ऐसे ही जब खाओ उस समय सिर्फ खाओ, नहीं हम टीवी के सामने ले जाएंगे, इतने टाइम तक टीवी भी देखेंगे खाएंगे भी, तो आप क्या खा रहे हो तो आपको पता ही नहीं। मोबाइल चला रहे हैं फिर खा रहे हैं, क्या खा रहे हो कुछ नहीं पता। इतना ही टाइम मिलता है ना मोबाइल चलाने को, इतना ही टाइम आपको खाने को भी तो मिल रहा है। यस, तो जो कहते हैं ना गट गट फीलिंग आ रही है, तो ये फूड जो है आपके गट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इंप्रूव भी कर सकता है। एंड गट इज
कनेक्टेड विद योर नर्वस सिस्टम, सब कुछ नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका। बटरफ्लाई इज इन माई स्टमक, ये क्या है? एक इमोशन से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्स हैं, आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तो यहाँ स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस पता है? यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। यस, स्ट्रेस जो है दो टाइप के होते हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज यूजफुल स्ट्रेस, डिस्ट्रेस इज द बैड वर्जन। एग्जाम में आपको स्ट्रेस हो रहा है, कल पेपर है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ये क्या है? यूजफुल स्ट्रेस है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये यूजफुल है, आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, या आप किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही होगा। डिस्ट्रेस इज कि एग्जाम है कल, सेम एग्जाम्पल, और हमने इतनी पढ़ाई की कि हमारी तबीयत ही खराब हो गई, अब हम एग्जाम देने लायक नहीं है, इतना स्ट्रेस हो गया हमको, नहीं ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। 15 दिन पहले एग्जाम का आ जाता है टाइम टेबल, मिनिमम 15 डेज, तो 15 डेज एक एक पेपर उठाओ, अपने आप हो जाएगा, रीडिंग लगा लो। 15 डेज कम है, एक पेपर एक दिन पढ़ा, फिर एग्जाम के एक दिन पहले तो आपके पास वो टाइम है, तो 15 दिन पहले पढ़ लो, एक एक पेपर हो गए, उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या आप एग्जाम ही ना दे पाए, ठीक है। कुछ काम किया गलती, टीचर से डांट पड़ेगी, इतना डर गए कि हम कॉलेज ही नहीं गए। अब कॉलेज नहीं गए, क्या क्या मिस किया? क्लासेस मिस हुई, अब वो कोई देगा नहीं, अब नोट्स बनाए हैं क्लास के बच्चे, वो कोई देगा नहीं, है ना? देते हैं, शेयर करते हो तुम लोग नोट्स? मेरे स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट ने एक बार आई क्लास में, तो कहती है मैम आपने जो पढ़ाया है वो मुझे, मैंने कहा तुम एब्सेंट, मैं तुम्हें क्यों दूं, जो बच्चे आए थे उनसे मांगो। अब जो वो उससे मांगने गई, मैं क्यों दूं, मैं रोज आती हूँ, डेली आती हूँ, मैं उसको क्यों दे दूं अपनी मेहनत का काम? ऐसा होता है। तो स्ट्रेस इन सब चीजों से भी बचाता है ना। प्लस बच्चों में ये होता है, स्टूडेंट्स में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में कि कंपटीशन की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर 90% है और आपको जो सेकंड आया है उसको 89 मिला, जो टॉपर है वो 90% हुआ, 89 वाला ज्यादा दुखी होगा, 90% तो खुश है, 89% वाला बहुत दुखी होगा, क्या खाता है, क्या पढ़ता है ना। इसलिए नहीं खुश है कि मुझे 89% मिल गया, सेकंड आया, दुखी है कि 90%, है ना। तो फूड के अलोंग विद एक और साइड में मैं आती हूँ, एक रीजन डेवलप करूँ लाइफ का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लास्ट टाइम भी मुझे मिले थे, कि हमें ये स्ट्रीम नहीं मिली, मेन कोर्स एमबीबीएस नहीं मिला हमें, तो यहाँ हम आए हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुखी हैं। जो मिला है बहुतों को नहीं मिला है, जो तुम्हें मिला है वो बहुतों को नहीं मिला है। खुशी इस बात की मनाओ कि वो तुम्हारे पास है, बहुतों के पास नहीं। ये जो तुम्हारा आयुर्वेद है, मैं एलोपैथी में विश्वास नहीं करती, और मुझे कुछ भी होता है एलोपैथी से ठीक ही नहीं होता है, आयुर्वेद से ही ठीक होता है। बड़े बड़े वैसे कहते हैं कुछ पेट खराब हो गया चलो ठीक हो गया, एलोपैथी में शर्ट लिया ठीक हो गए, ऐसा नहीं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का नाम सुना? छोड़ो, वेरिकोज वेन्स का सुना होगा, जल्दी नहीं ठीक होता है। लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था, सर्जरी की नौबत आ गई थी मेरी, यहीं के हमारे साथ चलते हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा मैम 15 दिन आप मेरी दवा खा लीजिए, उसके बाद आप सर्जरी करा लीजिएगा। मैंने 15 दिन उनकी दवा ली, 16वें दिन मतलब पेन का नामो निशान नहीं, एक्सट्रीम पेन होता है उसमें,
सर्जरी तो दूर की बात है, और आज तक रिपीट नहीं हुआ। तो मुझे सिर दर्द भी होता है तो मैं कॉम्बिफ्लैम खाने नहीं जाती हूँ, फोन करती हूँ, सर हैं, फ्रेंड हैं, उनको फोन करती हूँ, सर सिर दर्द हो रहा है, बताइए क्या करूं? तो वो भी हंसने लगते हैं, मैम आप तो टोटली आयुर्वेद पर डिपेंडेंट हो गई हैं। कहाँ है? तो आपका आयुर्वेद में बहुत सारे गुण हैं। अगर ये सोच रहे हो मुझे मेन स्ट्रीम एमबीबीएस नहीं मिला, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, यहाँ आके मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो जो आपके पास है 90% नहीं है, आपके पास 89% तो हो, सेकेंड वेव तो हुआ, कल को क्या होगा क्या पता, कल को ओवरकम कर लेगा आयुर्वेद, पक्का होगा ना आएगा। इतने केमिकल्स हैं दुनिया में, इतना हम लोग इनटेक कर रहे हैं, वो सब असाइड हो जाएगा। तो आप लोग ही का टाइम आने वाला है ना, अपना टाइम आएगा, टाइम आप लोगों का, तो 89% में खुश रहो, ये मत सोचो कि हमें ये नहीं मिला, है ना। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपका दिल बहलाने के लिए या ये वो, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने अच्छा होते देखा है, ठीक है, जो एकदम हार चुके थे। तो अब रही कंपैरिजन की बात, मेरे मामा का लड़का है, वो तो एमबीबीएस कर रहा है, मुझे आयुर्वेद करना पड़ रहा है, मेरे खानदान में सब एमबीबीएस हैं, मुझे आयुर्वेद करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने आप को आयुर्वेद से साबित करो, है ना, अपने आप को आयुर्वेद से साबित करो तुम लोग। एक स्टोरी और, एक गांव था, तो वहां बिजली बिजली नहीं थी, कभी किसी ने देखी ही नहीं, 100 लोग थे, हर लोग अपना रास्ता जानते थे, कुछ उनको कुछ करना नहीं पड़ता था कि भाई ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं या घंटे भर में पहुंच रहे हैं, पता है इतने स्टेप्स चलेंगे, राइट मुड़ेंगे, मेरा घर के अंदर जाएंगे, यहाँ ये चीज रखी हुई है, वहां वो चीज रखी हुई, सब हो रहा है, शाम ढलने से पहले सब काम खत्म, सो गए, अंधेरा हुआ सो गए, फिर सुबह हुआ, सुबह हुई, फिर उठे, फिर अपने काम पे लग गए, सब कुछ एकदम पीसफुल चल रहा था। अचानक एक बंदा कहीं से लालटेन लेके आया, वो लालटेन अपने घर में टांग दिया। अब जो बाकी 99 लोग थे, 99, क्या रोशनी आ रही है इसके घर में, वाह भाई सब कुछ दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है रात में इसका घर, ठीक है। अब हर किसी की जाते, मतलब अंधेरा होने के बाद हर कोई उसके घर का चक्कर लगाता है, अरे यार ये कहाँ से लाया है लालटेन, दिल्ली मुंबई गया होगा, वहां से ले आया होगा। तो सबको ये टेंशन थी कि इसके घर लालटेन है, हमारे पास नहीं, है ना। लाइफ इतनी स्मूथ चल रही थी अब तक, अब सबको खुजली हो रही है, हमें भी लालटेन चाहिए, उसके पास लालटेन है, और वो बंदा क्या कर रहा है, देर तक जग रहा है, जो भी कर रहा हो वो, लेकिन देर तक जग रहा है, जो काम उसका दिन में निपट जाता था वो रात में कर रहा है, तो स्लीपिंग हैबिट उसकी गड़बड़ा गई, स्लीपिंग टाइम जो है वो कम हो गया। तो जिसकी इतने सालों से हैबिट है इतनी देर सोने की, अंधेरा होने से पहले खाना खा लो, एकदम डिसिप्लिन लाइफ, वो डिस्टर्ब हो गए, अब वो बीमार रहने लगा हल्का हल्का। लेकिन जो बाकी 99 थे उन्हें सिर्फ लालटेन दिख रहा है, उन्हें हेल्थ उसकी नहीं दिख रही, उन्हें सिर्फ लालटेन दिख रहा है, वो सबके सब 99 दुखी। अब क्या करें, या तो शहर जाएं, 99 लालटेन लाएं, 99 की 99 जाएं, या तो एक इसकी लालटेन बुझा दें, तो क्या ज्यादा अच्छा है? सोचो ही ना उसकी लालटेन के बारे में ना, अपनी जैसी लाइफ है वैसे जियो, तुम ज्यादा हेल्दी हो, लालटेन क्यों दिख रहा है, उसकी हेल्थ क्यों नहीं दिख रही है, उसकी लाइफ तो कम हो गई है, तो बीमार है, आंख के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, है ना, लेकिन सबको उसकी लालटेन दिख रही है, किसी को ये नहीं दिख रहा है कि हमारी लाइफ तो इतनी अच्छी है ना। तो लालटेन को हटाओ, जो तुम्हारी डिसिप्लिन लाइफ है उसमें रहो, उसमें ज्यादा खुश हो और उससे ज्यादा सुखी हो। तुम अगर 100 साल जियोगे, वो 50% हो गई उसकी लाइफ, तो 85 साल जिएगा।
ठीक, तो लालटेन भूलो, 90% भूलो, खानदान एमबीबीएस है वो भूलो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों जो है वो भूलो। अब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये करो, है ना। किसको प्रॉब्लम है? सब लोग खुश हो ना अपने स्ट्रीम से? लास्ट टाइम कुछ 2 बच्चे थे जो नहीं खुश थे, उनके लिए। ठीक है, तो हम वापस आए फूड पे। तो हमारी सांसें, फूड, मेंटल हेल्थ जो है वो कनेक्टेड। योगा तो आप लोग बेटर जानते हैं, हमारे ही देश से गया, लेकिन हमारे ही देश में लोग इसको नहीं फॉलो कर रहा है, बाहर वाले बहुत फायदा उठा रहे हैं। इसमें क्या है, योगा में आपकी सांसें भी आ रही हैं, व्हाट यू आर ब्रीदिंग, व्हाट यू आर ईटिंग, सब आ जा रहा है। क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा आप करते हैं, उसके बाद दिन भर आप इतना फ्रेश महसूस करते हैं। एक बार 5 मिनट का भी एक्सरसाइज आपने कर ली सुबह, दिन इतना अच्छा जाता है, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली तो रहता ही है। इससे, योगा करने से गट भी आपका अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम सुपर, ठीक, सांसें तो अच्छी हो ही जाती हैं, बहुत सारे आसन हैं आपके जो आपके ब्रीदिंग स्टाइल इंप्रूव करते हैं, और ये सब अच्छा रहेगा तो आप हैप्पीनेस तो होगा ही। हैप्पीनेस हार्मोन होता है, डोपामिन, है ना। तो ये कब सिक्रेट होता है? जब आप स्ट्रेस सारे हटा दें, खुश रहें। तो खुश रहने हमारे बस में नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ अरे करते रहो सारा दिन। खुश रहने के तरीके ढूंढो, है ना, खुश रहने के तरीके ढूंढो। वो तरीके सब कुछ आपको खुद के लिए करना पड़ेगा, आपको कोई प्लेट में परोस के नहीं देगा, मम्मी पापा ने जितना करना था कर दिया, अब आपको खुद रास्ता ढूंढना है। यहाँ पढ़ के हम निकलेंगे तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करेंगे, अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन करेंगे, ऑप्शन है आपके पास। तो आप ही लोग तो बस दुनिया डॉक्टर्स के बल पे है, भगवान कहे जाते हैं। तो खुश रहने का रीजन ढूंढो, क्यों मत ढूंढो, क्या ढूंढो, कब करना है ढूंढो, है ना। जब रीजन ढूंढोगे तो अपने आप रास्ता निकलता चला जाएगा, ठीक है। रीजन चाहिए, टैलेंट तो आप लोग टैलेंटेड तो हो ही, यहाँ हो मतलब टैलेंटेड हो। कभी कभी होता है टैलेंट के साथ साथ हमें अपना स्किल ढूंढना पड़ता है, एकदम बुक में सारा टाइम नहीं रहना है। बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, गार्डनिंग करो, इसकी तो जगह है आपके पास, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ करो, अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करो, ठीक है। अपने ही इसमें आगे क्या करना है, नई चीजें खोज करो, बहुत सारी खोजें तो रेगुलर होती ही जा रही, नई चीजें खोज करो, नाम हो आपका कुछ, मतलब जीना तो सब लोग जिए जा रहे हैं, अब आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना है ना। कैसे स्टैब्लिश करना है वो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। आप एक जर्नल बनाइए रात में सोते समय, उस जर्नल में क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जितने दिन भर में 5 सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो आपकी हुई, जो आपको लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, दिन भर तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये रात में सोने से पहले लिखो। बहुत नींद आ रही है नहीं, लेकिन लिखना, डिसिप्लिन बना लो, रात में सोने से पहले लिखना है 5 एक्टिविटीज कुछ। तो उन 5 एक्टिविटीज को आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये दिन हमारा तो बड़ा यूजफुल गया। पौधे हैं उनके बारे में खोज करो, मतलब बहुत साल पहले क्या हुआ था, 15.5-16 साल का लड़का, ठीक है, क्रिकेट आप लोग सब लोग देखते हैं,
15.5 साल 16 साल का लड़का पिच पे आया टेस्ट मैच इंडिया पाकिस्तान। सामने उनके कौन था, वो तो बैटिंग एंड पे था, सामने नवजोत सिंह सिद्धू। टेस्ट मैच, पाकिस्तान के दिग्गज इतने लंबे लंबे और 5 फुट कुछ इंच का वो बच्चा, एक 15.5-16 साल का बच्चा। अब नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं बाप रे, इमरान खान, वकार यूनिस, कई लंबे लंबे बॉलर 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल डाल रहे हैं, तो मर जाएगा आज ये लड़का, बचेगा नहीं, वापस ठीक से नहीं जाएगा, एम्बुलेंस में जाएगा। अब वो बच्चा कुछ नहीं, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, मतलब वो भी डर के वापस जा सकता था। लेकिन पहली गेंद किसने डाली है मुझे नहीं याद है, पहली गेंद पड़ी साइड से जो करके निकल गई, ठीक। दूसरी गेंद आई उसके नाक पे, नाक से खून खून पूरा हो गया, पूरा खून खून। उस टाइम क्या होता था, ज्यादा दवाइयां ने आइस पैक कर दिया, कुछ पेन किलर दे दिया, लगा दिया उसको, और वहां कर रहे हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू बेटा तुम तो गए, अब पाकिस्तानी सब खुश। खैर वो तो बच्चा समझ ही रहे थे, उनको कोई फर्क ज्यादा पड़ नहीं रहा था। उस बच्चे से नवजोत सिंह ने पूछा क्या करना है, अब जाओ तुम रेस्ट करो, नहीं कर पाओगे। उस बच्चे ने कहा मैं खेलूंगा। अरे मैं खेलूंगा, ठीक। तो बैंडेज वैंडेज लगा के अगली गेंद आई, बाउंड्री 4, उसके बाद बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, फिर मुड़ के देखा नहीं उस बच्चे ने। नाम जानते होंगे आप लोग, तो उसके पास रीजन था, वो उस दिन लौट गया होता तो आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं होता, है ना। बहुत सारे मैचेस उन्होंने खेले, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हुए, फिर भी 4 बजे बहुत ठंड थी, प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट्स में, ठिठुरते हो। लोग जाके देखे कौन है भाई, अरे तुम खेल रहे हो, तुमको खेलने प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत, नहीं नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो वो जज्बा उनका उस टाइम तक भी बना रहा जब वो एकदम स्टैब्लिश्ड थे, सीनियर प्लेयर। तो रीजन डेवलप करो, आते जाते तो लोग रहते ही हैं, लेकिन स्टैब्लिशमेंट का रीजन डेवलप करो, ठीक है। तुम यहाँ हो किसी रीजन की वजह से हो, माँ बाप ने ही लाके तुम्हें खड़ा किया, या जो भी गार्जियन वो लाके बस उनका काम हो गया, अब तुम्हें अपना देना है, ठीक है। अब तुम्हें अपना देना है, ये सोचो कि हम यहाँ आ गए हैं, हमारा क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ी जगह है, डॉक्टर बन के निकलोगे तुम लोग, अब कैसे एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। पूरे इंडिया का, पूरे विश्व में तुम्हारा नाम हो सकता है, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा इन्वेंशन, कुछ ऐसे डिस्कवरी, है ना, करना है ना। तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट का तो नाम होगा ही, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलना है, खुद को। सचिन का तो भाई हम लोग तो फायदे में हैं ही, हमारा देश कहाँ से कहाँ, क्रिकेट में नाम है, एक वर्ल्ड में नाम है, कौन है जो नहीं जानता है, बच्चा बच्चा। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, उन्हीं को हुआ। उस दिन वो लौट गए होते तो आज कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये आपके लिए है कि रीजन डेवलप करना। खड़े तो सब लोग होते हैं भीड़ में, लेकिन स्टैब्लिश वही कर पाता जो दिखता है, लाइट जिसके ऊपर फोकस कर है, ठीक है। लाइट जिसके ऊपर पड़ेगी वही है ऊंचा, वही है स्टार, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं आप ही के इंस्टीट्यूट की नहीं, बाहर भी, मेरा एक क्लाइंट, पेशेंट को हम लोग क्लाइंट बोलते हैं साइकोलॉजी में, आया बहुत डिप्रेस्ड,
कि मैं लाइफ में करूंगा क्या, लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया है, रोज ये करना है, सुबह उठना है, ये रूटीन है, शाम को सो जाना है। मैंने कहा ये तो तुमने बनाई है रूटीन, तुम इसको हटाओ। मेरे जीवन का सूर्य जो है वो अस्तांचल में है, उदय हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा तुम इस नजरिए से क्यों देख रहे हो, इस नजरिया, ये नजरिया बदलो। सूरज तो बेचारा अपनी जगह पे है, उसको हम लोग क्यों कोस रहे हैं, वो तो एक जगह खड़ा है, घूम तो तुम रहे हो ना, उल्टा क्यों घूम रहे हो, सीधा रोशनी देखो। सूरज को गाली देने से क्या हो, घूम तो तुम रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ घूमो। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करके जीना बहुत बड़ी बात है। पहला रास्ता सबको क्या दिखता है, जीवन से तंग आ गए हैं, सुसाइड अटेम्प्ट, सबसे आसान तरीका सुसाइड। हालांकि जो भी इस दौर से गुजरता है वो मेजर डिप्रेशन में होता है। सुसाइड करना भी बहुत आसान नहीं है, बहुत बार मरना पड़ता है, तब सुसाइड करता है व्यक्ति। लेकिन क्या यही एक एंड है, ऑप्शन एक ही है हमारे पास? बहुत सारे ऑप्शन है, नई शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके, जिंदगी में खत्म थोड़े हो जाते हैं। ऑप्शन किसको ढूंढना है, आपको ढूंढना है। आपको लगता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसके अलावा हमको वहां फोटोग्राफी में हमारा बड़ा इंटरेस्ट हो, इसके साथ फोटोग्राफी करो, टाइम नहीं है। मेडिकल स्टडीज में टाइम कहाँ होता है, 1 घंटा कम सो, नहीं, डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो। डिसिप्लिन्ड लाइफ, इतने आवर्स हमको सोना है, ये डिसिप्लिन रहेगा तो आप उसमें से प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिन लाइफ है तो उसमें से प्लस माइनस हो सकता है, मैथ्स चला सकते हैं उसमें, है कि नहीं? तो आप जो हमारी फेवरेट हॉबी है आप उसको भी टाइम दे सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ रहिए। तो सुसाइड इज द लास्ट थिंग, मतलब ये थिंग ही नहीं है, इसको काउंट ही नहीं करना, क्योंकि ये जो मैं एयर और ब्रीथिंग और फूड की बात कर रही हूँ, ये एयर, आपकी सांसें आपको किसने दी है? माँ बाप ने दी है, माता पिता, आपकी तो है नहीं। आपने खुद को तो संरचना सृजन तो आपने किया नहीं, तो किसने हक दिया उसको एंड कर दो सेकंडों में? नहीं, उस टाइम ये सोचना है कि ये चीज तो हमारी है ही नहीं, इसको डिस्ट्रॉय करने का तो हमें अधिकार ही नहीं है, इसको तो हमें प्रिजर्व करके रखना है, ये तो उधार की है भाई, ये तो हमें किसी ने दी है। तो ये लाइफ में हटा दो, कुछ है ही नहीं है, सुसाइड वर्ड ही हटा दो। हर चीज का तरीका होता है, हर चीज का एक वे आउट होता है। आप फ्रेंड से बात करो, फैमिली से कभी कभी नहीं बात कर पाते हैं कुछ लोग फैमिली से बात नहीं कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स हैं आपके, फ्रेंड्स लगता है मजाक उड़ाएंगे, टीचर्स हैं आपके, टीचर्स से डर लगता है डांट पड़ेगी, उसके लिए हम बैठे हैं। स्टूडेंट से पैसा नहीं लगता है, ठीक है? तो बात करो, घुटो मत। इंट्रोवर्ट, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी पहले जब पढ़ती थी, मैं जब पढ़ती थी तो बहुत इंट्रोवर्ट थी, स्टेज पे डर जाने में डर लगता था, पैर में कांप रहे हैं। फिर मेरी एक टीचर ने देखा मुझे कि भाई मार्क्स और उसके अच्छे आ रहे हैं, और क्लास में कुछ क्वेश्चन उठा के पूछ दूं, अब ऐसे हो रही है आवाज, क्यों?
तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोग्राम होता था, वो बस मुझे मैनेजमेंट का सब कुछ दे देती थी, होस्ट बनोगी तुम। मैं मुझसे नहीं हो पाएगा मैम, ये वो, एकदम आंसू आ जाते, तुम ही करोगे। वो करते करते आ गया। तो वो उस चीज पे ओवरकम करो जिससे तुम्हें डर लगता। ये सब्जेक्ट कैसे हो पाएगा? थोरो स्टडी करो। आजकल तो क्या क्या, मैं मेरे बेटा पता नहीं क्या फिजिक्स वाला और पता क्या क्या आ गया है कंप्यूटर में। उसको प्रोग्रामिंग से बड़ा डर लगता था। किसी फ्रेंड ने सुझाया फिजिक्स वाला ज्वाइन करो, कंप्यूटर उन्होंने अभी अभी ऐड किया है, पहले था नहीं। अब हाईएस्ट लाता है कंप्यूटर्स में। तो वे आउट ढूंढो, फ्रेंड से बात करो, इसका क्या तरीका हो सकता है, टीचर्स से बात करो, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट बहुत हैं, है ना। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है कि नहीं? ठीक है, अब मेंटल हेल्थ पे आते हैं। फूड तो हमने कनेक्टिविटी बता दी कि whatever you eat is connected with your gut and gut is directly related with your emotions. क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। आप जो भी खा रहे हैं, अगर आप उसमें एकदम माइंडफुल ईटिंग करें, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, हमारे शरीर को इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है। और हैप्पीनेस क्वेश्चन एक बार, कभी कभी चीटिंग करनी है तो भाई इससे हमें हैप्पीनेस कितनी मिल रही है, ये प्योरिट चीज खा के हमें कैसा लग रहा है, ये चीट वाला खा के हमें, चीट मतलब कि वंस इन अ वाइल जब आप ठीक है ये खा लेते हैं आज, चाउमीन खा लेते हैं आज, उससे आपको कितना फायदा हो रहा है और हैप्पीनेस कितनी मिल रही है। तो इमोशंस यहाँ जुड़ जा रहे हैं, ठीक। उसको खाने के बाद जब आपका पेट खराब होता है, वहां भी आपके इमोशंस हैं, ठीक, नेगेटिव इमोशंस। क्यों खाया यार, इतनी लालच आ गई, क्यों खाया, ठीक है, नहीं खाना था, कंट्रोल कर लेना था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस आपके फूड से भी जुड़े हुए हैं, मेंटल हेल्थ। फिर आता है आपका एफर्मेशंस, जो मैंने बात की ना, कॉन्फिडेंस, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। कभी कभी हम जो फैसले लेते हैं, डिसीजंस, श्योर नहीं होते हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उस टाइम हमें क्या करना है? खुद से बातें करो। अभी आपके ऊपर कोई छोड़ दिया जाए, डिसीजंस आपको लेना है, ठीक, शीशे के सामने खड़े हो, वो चीज बोलो जो आपको डिसीजन लेना है, ठीक। फिर दो पॉजिटिव उसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, इसके बाद दो नेगेटिव। अगर वो जो पॉजिटिव हैं वो सिर्फ आपके लिए, इसकी सिर्फ आपका फायदा हो रहा है, और नेगेटिव जो है आउटकम, उससे लोगों का फायदा हो रहा है। आपके लिए नेगेटिव हो रहा है लेकिन बाकी लोगों का फायदा हो रहा है। तो आपको जो है अपने बारे में कम सोचना है, पहले लोगों के बारे में ज्यादा सोचना। क्यों? डिसीजन आप कोई ले रहे हो, अपने बारे में कम सोचना है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना। ऐसा जो आप डिसीजन लेते हो ना, वो हमेशा पॉजिटिव जाता है। जो दूसरों को लेके, मतलब मैन एज अ सोशल एनिमल, अकेले तो आपको चलना नहीं है, आपको सबको लेके चलना है ना। सबको लेके चलोगे, सारे खुश, आप भी खुश, उनका भी भला, आपका तो होना ही है, उनके भले से आपका भला होना ही होना है। लेकिन आप अकेले खुश हो तो ज्यादा दिन आप खुश नहीं रह पाओगे, वो टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है। हम खुश हो लिए, चलो बात खत्म, ठीक है। कुछ अच्छा बनाया खाना, अकेले अकेले खा लिया, बहुत अच्छा लगा, सारा मैंने खा लिया, है ना। फिर कुछ अच्छा बनाया, पूरी फैमिली को खिलाया, सबने तारीफ की, है ना।
और आज उसने फ्राइड राइस बड़ा अच्छा बनाया। कोई मेहमान आते हैं, हमारी बेटी फ्राइड राइस बहुत अच्छा बनाती है। 15 दिन बाद, 1 महीने बाद हमारी फिर कहीं पब्लिक प्लेस में हमारी बेटी जितना फ्राइड राइस अच्छा कोई नहीं बना सकता। ये परमानेंट हो गया अब कि आप फ्राइड राइस के एक्सपर्ट हैं। तो ये जो खुशी मिल रही है आपको, ये लॉन्ग टर्म है, और जो आपकी पर्सनल है वो तो तुरंत आप खुश हो ले खत्म। तो दूसरों को लेके जो चल रहे हैं आप, उससे जो फीलिंग आ रही है पॉजिटिव फीलिंग, है ना, वो फीलिंग आपके इमोशंस, आपके मेंटल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमेशा कोई भी डिसीजन लेने के पहले अगर आप कंफ्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, 1 मिनट सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम देखो, इसके बाद डिसीजन लो। और वो अफर्मेटिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, उसके साथ स्टैंड करो। आप, आपका कोई फ्रेंड है, आप उसकी अच्छी चीज में मदद कर रहे हो, तो लाख दुनिया कहे नहीं तुम गंदा काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपको उसके साथ खड़ा ही रहना है ना। एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ा ही होगा बचपन में। टॉक विथ अफर्मेशन, जो कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस रखो। फूड अच्छा खाओ, ओमेगा 3, आजकल तो सब लोग, आप लोग तो डॉक्टर, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। कोई भी चीज है उसके लिए थैंकफुल होइए। जो भी चीज आपको मिल रही है, थैंक गॉड फॉर दिस। हमारे यहाँ खाने से पहले मंत्र पढ़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, थैंक यू गॉड, आज मुझे ये खाना नसीब हुआ। बहुत लोगों को नहीं होता। जो हम घर पे बचपन में करते हैं ना, अभी तो आप लोग मैच्योर हो गए, दाल की कटोरी आई, क्यों दाल रोज बनाती हो, क्यों मंचूरियन नहीं बनाती, क्यों ये वो, एक टाइम के बाद आ जाती है मैच्योरिटी। थैंक गॉड आपने मुझे ये खाना दिया। हर चीज में ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल कि हमें ये मिला। स्कूल्स में मॉर्निंग प्रे, थैंक यू लॉर्ड, ये सब क्यों किया जाता है? मॉरल साइंस, मॉरल साइंस 12 तक चलता है मेरे ख्याल से, क्यों? आईसीएससी, सीबीएसई, सीबीएसई ज्यादा है। मॉरल साइंस किस क्लास तक चलता है? आईसीएससी में ये 12 तक चलता है। मैं आईसीएससी बोर्ड हूँ। क्यों चलता है? यही प्रैक्टिस करने के लिए। 8 तक भी बड़ी बात है, छोटी बात है नहीं। तो हर चीज की प्रेयर हम लोग बचपन में पढ़ते थे, थैंक यू प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर, फूड प्रेयर, है ना, स्लीपिंग प्रेयर, और हर चीज की प्रेयर, थैंकफुलनेस, थैंक्स गिविंग, ये सब प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम आज सुबह उठे हैं, प्रणाम, क्यों? आज आपने मुझे उठाया, मेरी आंख खुल रही है इस दुनिया में, उसके लिए थैंक यू। बहुत लोगों को स्लीप साइलेंट हार्ट अटैक हो गया और नहीं बचे। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हमारी लाइफ के कब चल दिए पता नहीं। तो आज हम रोशनी देख रहे हैं, थैंक यू। आज हमें पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, थैंक यू। रात में आज का दिन हमारा अच्छा रहा, कभी ये नहीं करा आज का दिन तो सड़ा गया। आज आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए धन्यवाद, मेरी गलतियों को क्षमा करिए, यही बोलते हैं रात में। तो रात में सोने से पहले बोलना है। इससे क्या होगा? कहा ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। ये जो हम प्रेयर्स करते हैं, ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती तो है, लेकिन एक आदत बन जाती। ये थैंक यू हम आपस में बोलने लगते हैं, एक दूसरे को बोल, थैंक यू वेरी मच, एक दूसरे को बोलने लगते हैं। सामने वालों को भी लगेगा कि हाँ हमने एफर्ट किया है। आपने थैंक यू बोल के क्या, एक थैंक यू 2 वर्ड से क्या जा रहा है आपका, है ना?
तो वो थैंक यू ग्रेटफुलनेस होता है, और जिसने आपके लिए किया उसको तो अच्छा लगेगा ही, है ना। सॉरी, थैंकफुल, थैंक यू, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं ये बहुत बड़ा मायना रखते हैं लाइफ में, है ना। मेंटल हेल्थ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत है लोगों में। अच्छा, मैक्सिमम मम्मी ने डांट दिया, मम्मी की डांट अक्सर नहीं, पापा की डांट। पापा ने डांट दिया क्योंकि पापा बहुत मानते हैं, रेयरली डांटते हैं। डांट दिया, अब उसको लेके पूरा दिन सोचे जा रहे हैं, पापा ने डांट दिया हमें। इतनी छोटी सी बात पे कोई डांटता है, वो बात दिल में लेके बैठता है। ठीक, अक्सर डांट खाने के बाद ही यही होता है, क्यों, है ना। नहीं, चलो डांट कर लेते हैं फिर आते हैं। क्या करना है, आपकी अगर फैमिली है, डांट दिया तो आप 5 चीजें उनके बारे में पॉजिटिव सोचो ना। उन्होंने उस दिन ये अच्छा काम किया था, पेटीएम में टीचर मेरे खिलाफ बोल रही थी, लेकिन पापा ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ये इसकी गंदी आदत है, है ना। उस दिन लोग मेरे इंसल्ट कर रहे थे कि ये तो ऐसे चलती है, ऐसा कपड़ा पहनती है। पापा ने कहा मेरी बेटी सबसे अच्छी है, मेरी बेटी सबसे अच्छा फ्राइड राइस बनाती है ना। पापा ने जब मुझे फीवर था तो ठंडे पानी की पट्टियां रखी, परेशान हो गए। पापा लोग अक्सर परेशानी दिखाते नहीं, ठीक हो जाएगा, क्या हो गया, कहते जरूर हैं, लेकिन माँ से ज्यादा परेशान होते हैं। माँ के अंदर बहुत पेशेंस होता है। पापा दिखाते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, है ना। वो टैकल करने का एक तरीका होता है, अपने इमोशंस को छिपाने का तरीका। तो 5 ऐसी चीजें याद करो उस टाइम जब आपको डांट पड़ती है और आप अपने रूम में आके फालतू डांट दिया मुझे। 5 चीजें ऐसी याद करो उनके बारे में, पॉजिटिव चीजें जब हुई थी और उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया था। 5 आप सोचोगे, आपको 10, 15, 20 पता नहीं कितने मिल जाएंगे। ये सोचोगे तो हो गई डांट, उसके बारे में दोबारा डांट के बारे में सोचोगे नहीं। इन फ्यूचर भी पापा ही तो डांटती है, ये दिमाग में आएगा। और ऐसा किसी की डांट के साथ आप करो, सिर्फ 5 उसकी अच्छाइयां ढूंढो। बाहर का व्यक्ति है, 5 एहसान ढूंढो उसके अंदर ये खराबी है तो 5 क्या अच्छाई है ना। चलो, और इसका ओवरथिंक, हाँ बोलो। तो पहले ये सोचो कि उसने डांटा क्यों। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक एग्जाम्पल दो, किसने कुछ कहा। तो पहले उसको एनालाइज करो ना, हमें डांट पड़ी है तो क्यों पड़ी है। ठीक है, हमें डांट पड़ी है, तुम क्लास में बात कर रहे हो, उसके लिए अच्छे से झाड़ दिया, इंसल्ट कर दी टीचर ने, है ना। तो पहले ये एनालाइज करो, उसका रीजन ढूंढो ना, डांटे आप क्यों। अगर आपकी गलती की वजह से आपको डांट पड़ी है तब क्यों सोचना भाई हमारी गलती, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर बिना आपकी गलती के लिए डांट पड़ी है तो आपकी गलती है कि आप चुप है ना। तो आप उस आदमी के पास जाइए, उसको बोलिए यहाँ मेरी गलती नहीं है, आपने मुझे क्यों डांटा। बिना गलती के है तो ये तो आपकी गलती है सुनना, लेकिन पहले एनालाइज करो कि भैया डांट क्यों पड़ी,
हो सकता है आपकी गलती, डांट पड़ेगी। ठीक है, एनालाइज फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कि अगर आपको लगता है आपकी गलती है, आप सुधार करेंगे ही, लेकिन फिर भी सोचे जा रहे, दिमाग से बात हट ही नहीं रही, है ना। तो जैसे मैंने कहा ना, जर्नल, ओवर थिंकिंग है, 1 घंटे से ज्यादा आप सोच रहे हैं, तो आप एक जर्नल बनाइए, कॉपी ऐसे खोलेंगे, राइट साइड में आप लिखिए आपको ये बात परेशान कर रही है, लेफ्ट साइड को आधा आधा डिवाइड करिए, एक साइड लिखिए पॉजिटिव, एक साइड लिखिए नेगेटिव। आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, एकदम उसके पीछे पड़े रहेंगे, तो पॉजिटिव चीजें क्या होंगी और नेगेटिव चीजें क्या होंगी। पॉजिटिव आपको एक भी नहीं मिलेगी। तो आप अकेले क्यों रहे हैं भाई, मैंने कहा ना कुछ ढूंढो। तो मैंने कहा ना अच्छा, रात में सोने से पहले मैंने कहा ना जर्नल बनाओ, एक कोई भी कॉपी ले लो, उसमें लिखो 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके साथ घटित हुई, है ना। 5 इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, उसको पढ़ो और एनालाइज करने की कोशिश करो, तुम्हारी गलती थी नहीं थी, है ना। गलती नहीं थी तो भाई बोलो सामने वाले से। सोने से पहले ये काम जरूर करो। फिर वो 5 इंपॉर्टेंट चीज में आपको ये भी एनालाइज करना है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है मैं सारा टाइम इसको दे रहा हूँ, इतनी देर में तो मैंने एक सीरीज देख ली होती, है ना। नेटफ्लिक्स पे आजकल कितनी सीरीज है, नेक्स्ट एक गेम खेल लिया, आजकल इतने हेल्थी गेम है, क्रॉसवर्ड। ये कहो अपने आप से, क्या ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, बट एक और स्टोरी, हाँ बोलो बोलो। रोना बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। कुछ नहीं, कहने तो लोगों को कमजोर है, जो नहीं हो रहा है वो कमजोर है, वो छिपा रहा है अपनी चीज ना, अपना निकाल दे रहे। रोना इज अ वेरी गुड हैबिट, पहली चीज। दूसरी चीज रहे छोड़ने की बात, तो एक टाइम में इतना बड़ा गोल क्यों सेट करना, उसको ब्रेक डाउन करो, छोटे छोटे गोल्स करो, है ना। एक चैप्टर है ये इतना बड़ा, छोटे छोटे टॉपिक्स उसमें से याद करो पहले, छोटे छोटे टॉपिक्स को एक हेडिंग, एक पैरा पढ़ा उसको एक हेडिंग दे डाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ नहीं, जो तुम्हें नेगेटिव लग रहा है हो सकता है नेगेटिव ना हो, है ना। पहले तो चर्चाएं करो, बातें करो कि ये नेगेटिव है चीज, गलत चीज है या सही चीज है। नहीं है, कोई टीचर से बात करो, मैं इसके बारे में लिखना चाहती हूँ, ये गलत चीज है या सही चीज है, वो तो क्लियर बता देंगे सही चीज है। अगर सही चीज है तो जैसे तुम्हें लिखना है, सपोज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके बारे में लिखना है, तो तुम अब बड़ा गोल है, बहुत बड़ा गोल है, क्या लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखते हैं, बर्थ कहाँ हुआ, माँ बाप का क्या नाम था, माँ बाप क्या करते थे, ठीक है, स्कूली शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, उनके इम्पोर्टेंट लाइफ
के इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखो। जो बहुत बड़ा टास्क है उसको छोटे छोटे गोल्स में डालो, ठीक है ना। फिर उसको एक हेडिंग डाल दो। इस हेडिंग के अंदर सबसे पहले लिखने की स्टाइल यही है, या जो भी तुम्हारा टास्क है, कि ऊपर ये एक हेडिंग उसको दे दो, है ना। लाइफ में कोई टास्क तुमको मिला है, उसको आज मुझे ये बड़ा गोल है, इसमें से ये पार्ट मुझे आज कर लेना, उसको ब्रेक डाउन करो। ठीक? कोशिश करूंगी सेकंड वाला जो टॉपिक है या टास्क है वो आज स्टार्ट कर दूं रात तक। नहीं हो रहा है तो कल तो पक्का ये करना, है ना। ऐसे ही थर्ड वाला एक में दो लिखो। जैसे तुमने छोटे छोटे टास्क में उसको ब्रेक डाउन करती हो, कोशिश करो एक दिन में 2 पॉइंट तुम कवर कर लो। 2 पॉइंट सोचोगी तुम्हारा 1 पॉइंट तो कवर हुआ, एक चीज तो पॉजिटिव हुई। रात तक तुम स्टार्ट कर दो, कि स्टार्ट करके छोड़ दो, अगले दिन तुम्हारा सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसको छोड़ने से नहीं बनेगा, उसको बस ब्रेक डाउन कर दो छोटे 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 टास्क में और करो। देखो, एक्सप्रेस करने की बात है ना, हमें क्या लगता है कि हम माँ से कहेंगे कि आज हम बहुत परेशान, है ना, या पापा से, तो हमें लगता है वो भी परेशान हो जाएंगे, बच्चा बहुत परेशान। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे हम परेशान हैं तो माँ बाप को खुशी होगी, चलो हमसे तो शेयर कर रहा है, अपनी बातें शेयर कर रहा है, हम उसको तरफ, हो सकता है आपके मम्मी पापा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, कहेंगे बेटा ये इनसे मिलो, इनसे बात करो, ये नहीं कोई मिल रहा है फ्रेंड से बात करो, इनके पास जाओ, घूम आओ, मंदिर हो आओ, मन शांत हो जाएगा, ठीक है। वो ज्यादा खुश होंगे तुम अपनी परेशानी बताओगे, ठीक है। नहीं, ओवर थिंकिंग पर्सनालिटी, हाइपर सेंसिटिव पर्सनालिटी कनेक्टेड है, लेकिन आप इससे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव कौन है? छोटे छोटे इमोशंस को बहुत जल्दी बहुत बड़ा बना के फील करना, ठीक है। खुश है, बहुत खुश है, सब कुछ लुटा दिया, इतने खुश हैं, लेकिन वो सबको जाके मिठाई बांटा है। दुखी है तो इतने दुखी हैं कि भाई 24 घंटे रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि तुम पे भी उतार दिया, तुम पे भी उतार दिया। हाइपर सेंसिटिविटी होती है कोई भी सिंगल इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना या बहुत ज्यादा फील करना। ओवर थिंकिंग है कि आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा सोचने, हाइपर सेंसिटिविटी बुरा नहीं है। देखो, बुरा इसलिए नहीं है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो सकते हैं। बहुत ज्यादा खुश हैं आप, दोस्तों को बता रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये जो इमोशन है, ये तो पॉजिटिव इमोशन है, आपने शेयर करना और बढ़ता है, लोग कहते हैं। एंगर जो डिस्ट्रक्टिव काइरोस थैनाटोस होता है, तो डिस्ट्रक्टिव है ये एंगर। इसको हम हेल्दी वे में कैसे ट्रांसफर करें, हमें ये सीखना है हाइपर सेंसिटिव पर्सनालिटी को, ठीक है। हेल्दी वे में एंगर अपना कैसे ट्रांसफर करेंगे? किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेस्ट है, ठीक। स्पोर्ट्स के थ्रू हम अपने फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। म्यूजिक है ना, कभी कभी कुछ भी सुन के रोना आ गया, तो हर गाना, आजकल के तो नहीं उतना, पुराने गाने आप लोग अगर मिडिल एज या पुराने सुनते हैं तो आपको लगेगा कभी कभी आप ही का गाना है ना। हाँ, अब मेरे लिए ही बना, ठीक। तो एंगर को हेल्दी वे में ट्रांसफर करो। म्यूजिक है, डांस है, कई लोगों का तुम डांस देखो, तांडव, है ना, ये क्या ही एंगर दिखा रहा है,
जोश में है तो कहीं का कहीं निकाल रहे हैं, है ना। राइटिंग तो और अच्छी चीज है, जो भी आ रहा है दिल में आप उसको निकालिए और फिर एनालाइज करिए, है ना। ये कर रहा है, ये लड़के ने आज मुझे कैसे इग्नोर किया, इसकी तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, है ना, इसका मैं मुंह तोड़ दूंगा। प्लस एक चीज होती है कंट्रोल, बहुत बड़ी चीज है, छोटी से एक वर्ड है लेकिन बहुत बड़ा है। कंट्रोल करोगे 5 कब सिर्फ 10 तक बस गिनती कर गिनो, एंगर में बस कह रही हूँ 10 तक काउंट करोगे, थोड़ा लेवल कम होगा एंगर का, है ना। 5 तक आते आते थोड़ा कम हो जाएगा। जब 1 पे आओगे तो भी अगर उबाल खा रहा है तो अलग हट जाओ, घूम के आओ, अपने आप को अकेला कर दो उस टाइम, है ना। लोगों के बीच मत रहो क्योंकि वो आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव हमेशा रहता है, ठीक है। तो नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ये सीखना है बस। मैम आपने कहा कि जैसे कि अपने पर्सनल डिसीजंस में दूसरे के व्यूज को भी इन्वॉल्व करना होता है। अगर मैम दूसरे के व्यूज को हम इन्वॉल्व करें तो एक लाइन आ जाती है, लोग क्या कहेंगे। तो उस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में मैम हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो ये चीज लानी ही क्यों है? आपने बताया मैम अभी कि जब भी कुछ डिसीजंस लो, पर्सनल डिसीजंस लो, समझ में नहीं आ रही है, मैंने ये कहा है कि लोगों का वेलफेयर सोचो, है ना। ये सोचो कि हमारे सिवा किसको किसको फायदा हो रहा है। ये मत सोचो कि मैं आज रेड टी शर्ट येलो पैंट पहन के जा रहा हूँ लोग मुझ पे हंसेंगे, है ना। हो सकता है भाई हमारी कुछ थीम बेस्ड पार्टी हो इसलिए हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। हर रेड टी शर्ट वाला तो या शर्ट वाला कूली नहीं होता है ना, तो हमारी भी कुछ इच्छा है पहनने की तो हम इसलिए पहन रहे हैं। हमारी मम्मी को बहुत पसंद है रेड कलर इसलिए हम पहन रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इज अ डिफरेंट टॉपिक, वेलफेयर इज अ डिफरेंट टॉपिक। हमारे डिसीजन से किसको किसको फायदा हो रहा है ये हम देखेंगे। बीइंग ह्यूमन नेचर में नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा आ जाते हैं, फिर उसको कैसे कंट्रोल करें। नेगेटिव एस्पेक्ट अगर आ रहे हैं तुम्हें, लोग क्या कहेंगे ये सोच रहे हो, 1 मिनट के लिए सोच लो लोग क्या कहेंगे, ठीक। अब ये जो तुम्हारा आ रहा है लोग ये कहेंगे, ठीक है, लेकिन इससे मेरा पर्सनल क्या फायदा हो रहा है, वहां पर्सनल आ जाओ। इससे मेरा पर्सनल क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। और लोगों का, मेरे सराउंडिंग जो लोग हैं उनका क्या फायदा हो रहा है, लोग तो कहेंगे ही, उनका तो काम है ना। मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल करें मैम? जैसे एक इंस्टेंट पे आता है कि ये करना चाहिए, फिर इसी सेकंड स्टैंड पे आता है कि नहीं दूसरा कुछ करना चाहिए। भाई मैंने कहा ना सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक नहीं आता है मैम, मूड स्विंग्स आ जाते हैं बीच बीच में। मूड स्विंग है तुम्हारा, सपोज किसी चीज को लेके कंफर्म नहीं हो, है ना, तो 2 मिनट शीशे के सामने खड़े हो, वही मैंने कहा ना, इसका तुम पॉजिटिव सोचो नेगेटिव सोचो कि अगर मैंने ये काम किया या ये डिसीजन लिया तो इसका पॉजिटिव असर क्या पड़ेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म असर है या लॉन्ग टर्म असर है ये सोचो। लॉन्ग टर्म है तो जरूर करो, शॉर्ट टर्म है तो तुम अवॉइड कर सकते हो। मैम जैसा कि आपने अभी पीपीटी पे प्रेजेंट किया था, तो एक नाम था श्री श्री गुरुदेव रविशंकराचार्य जी महाराज का। तो मैम अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू उनके जैसा कामनेस, हम्बलनेस एंड स्टिलनेस ऑफ माइंड एंड सेंस ऑफ नथिंगनेस कैसे पाया जाए? एक साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट हैं अब्राहम मास्लो, उन्होंने दी थियरी नीड ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। किसी ने सुना हायरार्की ऑफ नीड्स? नहीं सुना होगा साइंस। तो उन्होंने क्या कहा है कि पूरा जो ह्यूमन लाइफ है वो नीड्स पे डिपेंड होता है। सबसे पहली नीड है क्या है, प्राइमरी नीड्स, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, सेक्स, प्राइमरी नीड्स। इसके बाद आती है सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप को आपने चढ़ा, आप चढ़े इस पे। फिर आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड होता है छत चाहिए, ठीक है,
रात में अंधेरे में जाने से डर लग रहा है। इंसानों से तो डर लगता ही है, जानवरों से भी डर लगता है। इंसान तो आजकल डरावने ही हैं। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एक चार दीवारी चाहिए, ठीक है, रूफ चाहिए, बारिश में भीगे ना, इतना तेज सूरज है, ठीक है, जले ना, सेफ्टी नहीं, उस ये चढ़ लिया। फिर आता है नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। मैन इज अ सोशल एनिमल। अपनी बातें हमें कहनी है, लोगों की बातें सुननी है, लव चाहिए, ये मिल गया। उसके ऊपर लग्जरी नीड्स, ये सब मिल गया। फिर लग्जरी नीड्स, मारुति 800 है, सड़ गई है एकदम, है ना, मर्सिडीज चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना। अब मर्सिडीज चाहिए, ये लग्जरी नीड है। साइकिल में हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, ये चढ़ गए। अब एक स्टेज आती है जब हमें लगता है मर्सिडीज क्या जरूरत थी, लाइफ अच्छी चल रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, पैदल भी जा सकते हैं। फिर अगली और नीचे उतरे, इतने लोग हैं, चलो मिले तो भी अच्छा है, नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटी कपड़ा कोई दे दे तो ठीक है, वरना जब ये फीलिंग आ जाती है ना, तो सबसे ऊपर टॉप लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म को समझना कि भाई हम बस सुधार की जिंदगी लेके आए हैं, खत्म हो जाना, जैसे अच्छे जितना अच्छा काम कर सकें कर। तो जब वहां पहुंच गए ना, तब पंडित रविशंकर को मिलेंगे। वहां कोई नहीं पहुंच पाता है ना, तब महात्मा बुद्ध हो जाएंगे, ठीक। तो वो लेवल तब होगा जब हमें ये नहीं है कि भाई हमारी ट्रेन है 2:30 बजे छूट जाएगी, ठीक है, 2 बज रहा है, भूख लगी है, बिना कुछ खाए काम नहीं। अब मैं नहीं बोलूंगी 2 बज रहा है, मुझे खाना चाहिए। इन सब से जब ऊपर उठ जाते हैं, है ना, कि भाई हम साइकिल से ये चलेंगे, कहने दो लोगों को मर्सिडीज नहीं, अरे इतना पैसा है क्या करेगा, कहने दो, हमें खुशी मिलती है साइकिल से, हमारी एक्सरसाइज हो रही, हमें दुनिया दिख रही है। तब वहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल आता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वहां पे आप सांसारिक चीजों से ऊपर उठ जाते हैं और कोई चीज आपको मैटर नहीं करती है, तब हम वो लेवल मिलेगा हमको। किसको? पब्लिक फियर को कैसे ओवरकम करेंगे? पब्लिक फियर, जो मैंने आपको कहा ना, आपका जो डर है लिखो, पहले लिखो उसको, फिर एक एक को ओवरकम करो, और कैसे ओवरकम करना है ये सोचो। आपके कॉलेज में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप आगे बढ़कर बोलो कि नहीं मुझे पार्टिसिपेट करना है और मुझे माइक पे रहना है। तो एक बार स्टैमर करोगे आप, 2 बार करोगे, अगली बार से आपसे अच्छा कोई बोलेगा ही नहीं, तीसरी बार से, है ना। और रीजन ढूंढो कि भाई हमें करना ही करना है इसको ओवरकम, नहीं तो लाइफ नहीं चलेगी। जब रीजन मिल जाएगा ना आपको कि भाई हमें बी सचिन तेंदुलकर बनना है, नाक फूट गई कोई बात नहीं, तो उनके पास रीजन था, है ना। तो अगर रीजन आपके पास हो कि ऐसे लाइफ तो चल ही रही है, डॉक्टर बन के निकल जाएंगे, कौन जान रहा है आपको, कोई जानने वाला भी तो चाहिए। वो जब आएगा तब फेयर भी हट जाएगा। फेयर मतलब कि वो चीजें करो जिनसे आप लोगों के बीच मिल रहे हो, हिल मिल रहे हो। नहीं कुछ हो रहा है, प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने हॉस्टल में कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। इतने बजे से इतने बजे तक, चलो हम लोग फ्री हो गए क्लासेस से, अब हम लोग चलो इंटरेस्टिंग टॉपिक, मूवीज, ये हीरोइन कौन सी टॉप पे है, ठीक है, इंटरनेशनल कौन टॉपर है, ये इसका एक एक
बांट दो, ये तुम्हारा टॉपिक है तुम इस पे बोलोगे, ये तुम्हारा टॉपिक है तुम इससे, तो आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और सबके सामने आप बोलेंगे भी, है ना। देखते रहो कहाँ क्या गोरखपुर में या आसपास कॉम्पिटिशन हो रहा है, सब में पार्टिसिपेट करो। मेरी फर्स्ट क्लास थी पीजी, रीजन पहले रीजन बैठ जाओ, थैंक यू मैम। रीजन पे कुछ ऐसी थी मजबूरियां माँ बाप की भी कि पीजी कर लिया, इसके बाद था कि भाई नहीं गोरखपुर के बाद जो करना है यही करना। सपने तो बड़े जेएनयू डीयू क्या क्या हमारे भी सपने थे, है ना। तो मम्मी पापा ने कहा जो करना है यही करो, यही रह के करो, यहाँ से बाहर नहीं निकलना। अब मैं यही दिन रात सोचती रहती कि सिंपल पीजी करके मैं क्या कर पाऊंगी। सब कोई 40 बच्चे निकलते थे उस टाइम, पीजी में 40 एडमिशन होते थे और 40 के 40 आते थे साइकोलॉजी में। तो यही दिमाग में चलता था, सिर्फ पीजी में तो गायब हो जाऊंगी, है ना, यही जीऊंगी मर जाऊंगी। फिर ये हुआ कि नेट का यूजीसी नेट का एग्जाम गोरखपुर में होता है, यूनिवर्सिटी कराती, सेंटर मतलब होता, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो ये भी था कि आपको कोई एग्जाम देने नहीं जाना है बाहर, लोग जीना मरना यही है। तो यूजीसी नेट का सेंटर होता था गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पीजी कर रही थी उस वक्त में, और मुझे लगा ये नहीं तो कुछ नहीं, कुछ और है ही नहीं मेरे पास ऑप्शन। ये एक रीजन बना, ठीक। तो अपेयरिंग होता है, एक होता है कि आप पीजी कर रहे हैं, ठीक है, आपका लास्ट सेमेस्टर है, उस टाइम आप एग्जाम दे सकते हैं पीजी का, यूजीसी नेट। तो एकदम जी मर के अब ये करना है, वरना मैं कहीं नहीं हूँ, ऐसे ही मर जाऊंगी, शादी ब्याह हो जाएगा, चूल्हे में मर जाऊंगी। तो जी मर के दिसंबर में एग्जाम, 12 दिसंबर एग्जाम था मेरा, और मेरे पीजी का रिजल्ट नहीं निकला था अभी, नेट का रिजल्ट निकल गया क्लियर। क्यों? रीजन था एक कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस डर से बाहर निकलना है, ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, है ना। तो रीजन डेवलप करो कि ये चाहिए तो चाहिए, ऐसे नहीं जीना है। उसके बाद तो भाई पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी, है ना। उसके बाद पीएचडी, तुरंत भगवान की दया से जॉब भी लग गई। लगी कहाँ? जहाँ के सपने देखते थे, दिल्ली, है ना। तो गोरखपुर से सीधे दिल्ली, अच्छे मतलब शादी हुई तो अच्छे, फैमिली इन लॉज बहुत अच्छे थे, करियर ओरिएंटेड। तो जो सपने थे जो नहीं पूरे हो पा रहे थे मजबूरियों की वजह से, माता पिता की कोई गलती नहीं, उस तो सब पूरे हुए हैं मेरे, है ना। और आज यहाँ हूँ आपसे बात कर रहे हैं। तो रीजन ढूंढना पड़ेगा आपको, कभी कभी अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखता, तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, लाइट जो है वो आप ही को ढूंढनी पड़ेगी, उसी से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। हेलो मैम, आई एम काजल। एक्चुअली मैम मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे डिसीजन मेकिंग मतलब कि जब भी डिसीजन कोई भी ऑप्शंस आते हैं उसमें एक चूज करना रहता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर चूज कर लिया फिर बाद में और रिग्रेट होता है कि सेकंड वाला क्यों नहीं लिया, फर्स्ट वाला ही क्यों लिया। और उसमें पूरा का पूरा दिन मतलब कि पूरे की पूरी मतलब कि जो डिसीजन लिया सब कुछ बर्बाद। और कुछ आउटकम तो बहुत अच्छा था जो पहले डिसीजन लेते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड वाले ऑप्शन का हमेशा रिग्रेट रहता है वो क्यों नहीं लिया। तो मैम कैसे इसको ओवरकम करें, बहुत बड़ी इशू है। मैंने अभी बात की ना अफर्मेशंस, वो एकदम कॉन्फिडेंस में भाई मैंने सबसे अच्छा किया, है ना। मैं क्वेश्चन एग्जाम लेके आई हूँ, मैं टॉप करूंगी, करने के बाद बस दिमाग में ये रखो टॉप मुझे करना, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचो कि अगर टॉप
नहीं किया तो क्या, इस क्वेश्चन को इससे लिखा होता तो क्या हुआ। एक बार डिसीजन लो, खत्म। ठीक है? क्योंकि आप ये सोचो कि अगर हमने सेकंड वाला चूज किया होता तो ये है ना, सेकंड वाला हमें एक मौका मिला, ठीक है, और हमने उसमें अपना बेस्ट दिया। अब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो होगा क्या, ये सोचो। पीछे मुड़ के अगर हम देख रहे हैं, आवाज आ रही है ना, तो उससे हो क्या रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अगर हम 10 बजे अपनी क्लास में नहीं पहुंचे, टीचर एज ए टीचर 10 बजे क्लास में नहीं पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स हाउलिंग करेंगे, भाई इतनी लेट से मैम आई, 5 मिनट बाद आई, हम तो पहले ही पहुंच गए, है ना। तो इसके बाद क्लास में एक बार इंटर किया, हमें ये सोचे कि भाई हमने रिक्शा ना किया होता, ऑटो किया होता तो हम जल्दी पहुंच गए। तो हमें ये सोचना है, अब हम क्लास में पहुंच गए हैं, अब क्लास में पहुंचने के बाद क्या, आपने जो डिसीजन ले लिया उस डिसीजन को ये साबित करने के लिए कि जो डिसीजन है उसके लिए आपको क्या, ये मत सोचिए ये डिसीजन लिया नहीं लिया, ये लिया होगा अच्छा होता, ये सोचो कि हमने जो डिसीजन लिया है ये प्रूव करने के लिए कि हमने सही डिसीजन लिया है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रूव करो बस कि हमने सही किया। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है हेजिटेशन, बहुत बड़ी इशू है। तो किसी भी नए लोगों के सामने जाकर इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। तो वो जो मैंने कहा ना, आप अपने हॉस्टल में ही इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, स्पीच, डिबेट, डांस, म्यूजिक इवेंट, गाना गाना, जो आपकी हॉबी, ठीक है, वो इवेंट आप खुद ऑर्गेनाइज करिए। आज वो मंडे को ये होगा, तो सबके अकॉर्डिंगली आप लोग इवेंट डिसाइड कर लीजिए कि जहाँ आपको फ्रेंड में आने का मौका मिले। तो एक बार छोटे छोटे जगह से आप शुरू करेंगे, फ्रेंड से शुरू करेंगे, इसके बाद क्लास से शुरू करेंगे, ऐसा जो ब्रेक मिलता है 5 मिनट का, 5 मिनट का, उसमें भाई आप मेरा बोलेंगे, ठीक है, उस टाइम को आप खड़े होकर कुछ बोलो। थैंक यू मैम। हेलो मैम। मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मुझसे कोई गुस्से में या तेज आवाज में बात कर दिया तो मतलब मैं इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, इतना गुस्सा आता है मुझे, और मतलब ऐसा होता है कि मतलब मुझे पता है कि दूसरे की गलती है लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं पाऊंगी। ठीक है, मतलब जो तुमने किया ठीक है, और इसके लिए मैं ऐसा नहीं कि 1-2 दिन परेशान रहूंगी, 1 महीने 1.5 महीने तक उसी बात को सोचती रहूंगी मैं इससे ओवरकम कैसे करें। और मतलब मैं रोना आ जाता है मुझे छोटी छोटी बात कि मतलब मैंने उसे बोल दिया, उसकी गलती है, फिर भी मैंने उससे बोला ये मेरी गलती है, मुझे नहीं बोलना था उसे। देखो 2 चीजें, कोई गुस्सा हो के आपसे बोल रहा है, पहले जो मैंने उससे कहा एनालाइज करो कि आपकी गलती है कि नहीं। आपकी जब गलती है तो वहाँ एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है ना। क्यों वर्ड हटा दो, क्या कब ये सब लाओ, है ना। क्यों वर्ड हटा दोगे तो आपको लगेगा क्यों गुस्सा आया, ठीक है। ये ढूंढो कि मेरी गलती है तो मुझे अब इसको सही कराऊंगा, तो कोई भी डांटेगा। इस सिचुएशन में ये अपने आप को रख के ये सोचो कि अगर मैं उनकी जगह होती और मैंने उसने ये काम किया होता तो मैं कैसे रिएक्ट करती। यही तो प्रॉब्लम है, मतलब अब मुझे पता है सामने वाले की गलती है और फिर भी उसने मुझे कुछ कह दिया, सामने वाले की गलती, फिर भी मैं रोने लगूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी उससे। सामने वाली की गलती है, 5 मिनट रुको। सामने वाला अगर गुस्से में है किसी से, तो गुस्से में सामने दोनों गुस्से में बात कर रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलेगा। तुम 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दो, ठीक है। 10 मिनट बाद उसके पास जाके अपनी बात रखो, उस टाइम तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। 10 मिनट बाद जाओ, उसके सामने अपनी बात कहो, फिर बोलो कि मेरी गलती कहाँ थी, उसको खुद ही रियलाइज होगा। हाँ मैम, एक प्रॉब्लम और है, मतलब मैं काफी एक्सट्रोवर्ट लड़की थी पहले 8th क्लास तक, उसके बाद मैं इतनी इंट्रोवर्ट हो गई हूँ कि मुझे किसी फ्रेंड से बात करने का मन नहीं करता। मतलब किसी का कॉल आता है मैं कट कर देती हूँ, मुझे नहीं बात करनी किसी से, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई है। मम्मी पापा सब परेशान रहते हैं कि मतलब इसे हुआ क्या है,
कि बात क्यों नहीं करती किसी से? देखो ये इंट्रोवर्टिज्म नहीं, वो तुम्हारे बातचीत के स्टाइल से मुझे पता चल गया तुम इंट्रोवर्ट नहीं है ना। ये है कि मन कहते हैं ना, नहीं मन है ना। मैम ये एक दो महीने से नहीं, काफी साल से है, मतलब मैं बात ही नहीं करती किसी से। कोई अगर सामने से बोला किसी को कुछ काम है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है, बट ऐसा मुझे काम रहेगा तो भी मैं किसी से नहीं बोलूंगी कुछ। इंट्रोवर्ट मतलब हुआ कि हेसिटेशन, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी है कि आप बोल ही नहीं रहे, हेसिटेट कर रहे हैं, अपनी बातें अंदर ही रख रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट है कि आप बोलने, पर्सनालिटी तो है आपकी बोलने वाली, लेकिन आपने एक हैबिट डेवलप कर ली है कि अब इनको बताने का कोई फायदा नहीं है, क्यों मैं इनसे बात करूं, है ना। आपने एक हैबिट डेवलप कर ली। तो अगर आप इससे मम्मी पापा का फोन आ रहा है, मम्मी पापा का फोन आ रहा है, हम बात नहीं करेंगे, हैबिट डेवलप हो गई। अब आप उनको अपनी जगह, है ना, एक चीज होती है एम्पैथी, ठीक है, दूसरों के शूज पहन के देखो, उनकी जगह रह के देखो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, है ना। वो आपको फोन कर रहे हैं और आप नहीं उठा रहे, आप उनको फोन करिए 2-4 बार, वो नहीं उठाए तो कैसा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ये माँ है, ये पापा है, और मैं दूर रह रही हूँ, मैं फोन नहीं उठा रही हूँ, तो इस टाइम उनके मन में क्या चल रहा होगा, कैसी है, क्या खाई होगी, कितना परेशान होंगे, है ना। मैंने ये कहा है कि तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचो कि अगले को उससे क्या फायदा होगा। अपनी हैप्पीनेस तुम्हारी, वो कहते हैं क्षण भंगुर, टेम्परेरी होती है, बहुत छोटी। दूसरों के बारे में सोचोगी कि इससे उनका माइंडसेट इस टाइम क्या होगा, ठीक है, या वो कैसे फील करेंगे। हैप्पीनेस अगर उनको तुम्हारी वजह से होती है तो ये हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म की होती है। तो ये हैबिट डेवलप करो कि दूसरों को तुम्हारी वजह से हैप्पीनेस कैसे है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे किसी से बात करना नहीं पसंद, किसी का कॉल आता है मैं नहीं उठाती, तो मुझे ऐसा लगता है मैं करूँगी वो भी परेशान हो जाएगा, इससे बेटर ना करो बात। नहीं, तुम ये सोचो क्यों परेशान होगा, तुम कॉल करोगी, अभी आप क्यों परेशान होगा ये बताओ। मैम जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता, मे भी उसे भी ना अच्छा लगता। क्यों मे भी क्यों है भाई, मे भी वर्ड कहाँ से आया, तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, है ना। माँ बाप को कभी नहीं बुरा लगेगा कि मेरा बच्चा मुझे फोन करे, है ना। वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे, दूध उबल रहा है, गिर रहा है, वो तुम्हारा फोन उठाएंगे पहले। नहीं मैम पेरेंट्स तक का तो ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, बट मैं किसी फ्रेंड से नहीं बात करती। मतलब मैंने पूरा ग्रुप लीव कर दिया हर जगह से, मतलब सबसे कटाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में हो? हाँ मैं ग्रुप में हूँ, बट बात कभी नहीं करती। चैटिंग मत करो, बात कर, ठीक है ना। कुछ लोग की आदत होती है चैटिंग, मैं भी ज्यादा नहीं कर पाती, सीधे कॉल कर लूंगी, है ना। तो कॉल करो, देखो तुरंत मत उठाओ, तुम्हारा मन नहीं है, पता नहीं क्या बोलेगी यार, किस मूड में होगी, पकाएगी, है ना। तुरंत मत कॉल करो, तो उसके अंदर की जो बातें हैं पकाने वाली, वो दब जाती हैं 5 मिनट बाद। तुम खुद कॉल करो इसके बाद 5 मिनट बाद, तो तुमसे नॉर्मल बात करेगी। मैम मुझे ऐसा लगता है मेरे कॉल करने से मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, तो मैं किसी को कॉल या मैसेज नहीं करती। नहीं देखो, ईगो ये जो ईगो है ना, ईगो से ये सारी प्रॉब्लम, ठीक है। बैठो, एक स्टोरी सुनो, पहले एक स्टोरी सुनो। ईगो आ रहा है ना बीच में, देखो क्या हुआ। एक आदमी को आज दोपहर में बोला गया कि कल तुमको सिंहासन पे बैठना है, तैयारी कर लो, ठीक है। शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, उससे कहा गया कल तुमको सिंहासन पे बैठना है ना। अगले दिन सुबह सुबह उससे कहा जा रहा है, भैया ये जो तुम गहने वहने पहने हो, राजसी ठाठ में हो, ये सब उतारो, जंगल जाओ तुम 14 साल के लिए, ठीक है, जंगल जाओ, पिता ने कहा। तो वो कुछ नहीं बोले, वो बोले कब निकलना है। उन्होंने नहीं पूछा क्यों निकलना है, मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। ईगो यहाँ पे, उनका ईगो नहीं आया, यहाँ पे आया कि इस आदमी के साथ पक्का कोई मजबूरी है
कि ये मुझे ऐसा फैसला सुना रहा है, तो मैं ये नहीं, मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगा, उसने जो भी डिसीजन लिया है उसकी मैं रिस्पेक्ट करूंगा, है ना। तो वो आदमी चल दिया, सिंपल खड़ा हो गया, गिरवे वस्त्र धारण करके पत्नी ली, साथ में चल दिया, है ना। साथ में उनका भाई आया, तो भाई को ईगो हो सकता था ना, भैया मैं तो राजकुमार, मैं इनके साथ क्यों वन में जाऊं। भाई ने क्या किया, ईगो अपना, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे तो मेरा जन्म जन्म का साथ है, मैं इनको कैसे छोड़ दूं। बड़े भाई, पिता माता सब छोड़ दिया, बड़े भाई, पत्नी शायद पैर जमीन पे नहीं पड़े होंगे कभी, ठीक है, उनको भी ईगो आ सकता था कि शादी अभी हुई है, बताओ जंगल ले जा रहा है हमको, तो वो भी उसी ड्रेस में आ गई, मैं चलूंगी, अपना सब ईगो साइड रखते, है ना। कुछ नहीं किसी से पूछा, क्यों क्यों शब्द आया ही नहीं, क्या नहीं आया, कब निकलना, है ना। सब जंगल गए, जंगल हमारे गार्डन जैसा तो होता नहीं, ठीक है, बहुत मुसीबतें आई, चप्पल पहन के गए थे, 3 महीने बाद दूसरा भाई आया, वो भी उठा ले गया, तो ईगो तो था, लेकिन चप्पलें भी दे दी, है ना। अब एक बीवी थी, उसको भी किडनैप करके ले गए, है ना। तो उनका ईगो आ सकता था, ये अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती कुछ, इतनी वीरांगना के होते हैं इसको, तो यहाँ उनका ईगो आ सकता था ना, कि मैं क्यों ले लेता हूँ, लड़ बढ़ के, सीता जी तो तुम लोग जान रहे हो इतने केपेबल थी कि भाई वो खुद ही आ सकते थे, है ना। तो दो चीज होती है, एक रिस्पेक्ट, एक ईगो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी, इसलिए मैं नहीं वापस जा रही हूँ, वही आएंगे मुझे लेने, ईगो नहीं है। हाँ, ईगो होता तो फिर लड़ पड़ के मैं जाती अपने पापा के पास, जंगल में आती, है ना, क्यों चलो तुम्हारे साथ में, मैं राजकुमारी हूँ। लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो तो किडनैप होकर चली गई, ठीक है। फिर वो गए, हनुमान जी भी तो, उनके तो चुटकियों का काम है, उठा के सीता जी को ले आते, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो रही, उनके पति आए, उनको ले गए। ईगो यहाँ भी हो सकता था, तुमने मुझे निकाला, 14 साल का वनवास दिया, अब मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास वापस, मैं तो पूरा विश्व है मेरा, मैं तो भाई विश्व का स्वामी हूँ, सब जनता चाहती है मुझे, है ना। जनता रिवोल्ट करने को तैयार है मेरे एक आदेश को, तो यहाँ ईगो नहीं है। ईगो होता तो मैं वापस नहीं जाता, लेकिन मैं गया, ठीक है, इस सिंहासन से मुझे फेंक दिया, एक तरह से फेंका ही, और नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे, उस पर मैं दोबारा गया, मेरी पत्नी गई दोबारा, है ना। तो ईगो तो इस आदमी का भी हो सकता था, नहीं। तो ईगो जो है, ये ईगो क्लैश है ना, ये हर मुसीबत की जड़ है, इतना जान ली। ईगो आप किससे कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से, उसकी गलतियां क्यों ढूंढनी है, वो आपकी फ्रेंड है ना। दोस्ती की है आपने, तो मर जाओ उसके लिए। फ्रेंड बोला है तो भाई कुछ ईगो नहीं आना है, अपने आगे का खाना भी दे देना, और माता पिता का तो स्थान ही दूसरा होता, जीवन तो हमारा उन्हीं का। तो जहां ये वर्ड ईगो आया, वहां ना फ्रेंडशिप है तुम्हारी, दिखावा है, ये तुम्हारी तरफ से सिर्फ दिखावा। तो ईगो वर्ड तो भूल ही जाओ, ठीक है। ये हमारा है, मेरी फ्रेंड है, मेरे अंकल हैं, जहां तुम्हें अंकल आंटी ये सब लगा दोगे ना, मैं भी जुड़ जाता है ना, मेरा है, वहां ईगो तो एकदम भूल ही जाओ, उसकी गलती भी आपको नजरअंदाज कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा, मेरी चीज से गलती हुई तो क्या हो, मेरी गलती है ना। तो ईगो नहीं रखना है, फ्रेंड है आपका है, फैमिली है आपकी है ना, गर्लफ्रेंड है आपकी है, उसकी ही गलती। हाँ बोलो बोलो बेटा, ईगो नहीं रखना है, फ्रेंड को भी कॉल करना, ठीक। हेलो मैम। हेलो,
मैम मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ मैम, मेरे को मैम सिंगर बनना है, बट मैम पापा थोड़ा सपोर्ट कम मैम कर रहे हैं, वो राइटर है मैम एक्चुअली। वो मैम बोल रहे हैं कि कोई डिग्री ले लो फिर तुम ये करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बारे में, मेरे को नॉलेज है, उधर सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो मैम थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ लिटिल बिट। देखो पापा भी अपनी जगह सही है। ये जो तुम्हारा सिंगिंग एबिलिटी है ना, ये तुम साथ साथ कर सकते हो। अभी तुम्हें एक स्टेज चाहिए तो तुम, आजकल तो सोशल मीडिया इतनी डेवलप है। मैम यूट्यूब चैनल बनाया है। चैनल बनाओ, बस 2 भेजो, इधर उधर फॉलो करे लो। तो जब तक तुम ये देखो, ये जो तुम कर रहे हो ना अभी, ये जो तुम अभी कर रहे हो, ये तुम्हारी पाँव के नीचे जमीन है ना, ये तुम्हारी पाँव के नीचे वाली जमीन है, और जो तुम करना चाहते हो वो तो आसमान है। दोनों जरूरी है, ठीक है, लेकिन जमीन पे रह के ही तुम आसमान को देख सकते हो ना। मैम इसीलिए मैं उन्हीं की बात को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, तो फॉलो करो, अपने शौक पूरे करो, ठीक है। जमीन पे रह के आसमान के बारे में सोचो, देखो ऊपर, है ना, लेकिन यूट्यूब चैनल बनाओ, भेजो अपने वीडियोस इधर उधर। सोशल मीडिया बहुत बड़ा, कहाँ से कहाँ लोग पहुंच जाते हैं। रानू मंडल सिंगर बन के, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, अगर है तो तुम यहाँ पोस्ट। सिंगर डॉक्टर कौन है? डॉक्टर पलाश सिंह, जानते हो? सिंगर डॉक्टर्स भी होता है, तो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे तुम, मैं बता रही हूँ। ये सॉफ्ट स्किल्स जो है, जिसके अंदर होती हैं एम्पैथी, इमोशंस अपने आप आ जाते हैं, है ना। वो कुछ बोला, हम उस बात को लेट तो नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे हैं? कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे बोल दिया। हाँ, सोच रहे हैं बात करने, छोड़ने की आदत नहीं है। मतलब कि हमें बदला लेना है, उनका जवाब देंगे, कुछ कहेंगे, कर बदला लेंगे, हाँ, वो भावना चल। अच्छा, देखो 2 चीज है रिलेशनशिप्स में, 2 चीजें हैं। एक मैंने कहा ना, जब तुमने किसी नाम दे दिया, अंकल आंटी फ्रेंड बहन पापा मम्मी, तो वो चीज तुम्हारी हो गई, ठीक। वो मेरा है तो उसकी गलती है, वो डांट रहा है, वो मेरा है। हम उसको इग्नोर इसलिए करेंगे कि वो ऑलरेडी मेरा है, मेरी लाइफ का हिस्सा। कोई बाहर वाला कर रहा है तो तुम ये क्यों सोच रहे हो ये आदमी इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसे बदला दूं? ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया मैं उसके बारे में सोचूं? इतना इम्पोर्टेंस मत दो किसी को। जो तुम्हारा है बस उसकी आप केयर करो, जो तुम्हारा है ही नहीं उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं, इमोशंस ही नहीं, रखने ही नहीं, है ना। ऐसे तो कुत्ता भौंकता ही रहता है, गाड़ी के पीछे दौड़ता रहता है, अब गाड़ी वाला रोक दे, रोक के उसको लिफ्ट तो देगा नहीं। है तो सड़क का कुत्ता, मेरा कौन है? मेरा पेट तो है ना। तो जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके बारे में कुछ फीलिंग ही मत डेवलप करना। फीलिंग हो ही क्यों रही है उसके बारे में? रिवेंज क्यों लेना? बस जो तुम्हारी है उसके बारे में सोचो, और अपनी चीज को संभाल के रखना पड़ेगा। अपनी चीज से बदला लोगे, ईगो जहां आ गया ना वहां सब खत्म, है ना, सब खत्म कर देता है। तो जो तुम्हारा नाम जिसको दे दिया वो चीज तुम्हारी हो गई, उसका कुछ भी है तुम्हें इग्नोर करना। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसा कि आपने सेल्फ डाउट, वो सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशन की बात की, अगर उससे मैम नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को सोचते हैं तो अगर सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो उसको कॉन्फिडेंस में कैसे कन्वर्ट करें? नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, सेल्फ टॉक की बात की थी मैम आपने, तो उससे अगर सेल्फ डाउट क्रिएट होता है नेगेटिव जो एस्पेक्ट सोच के, तो उसको कॉन्फिडेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए? मैं समझ नहीं रही हूँ। नेगेटिव हाँ, नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये कर रहे हैं। सेल्फ टॉक की आपने बात ये की थी, तो मैम अगर उससे आपने बोला था पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में सोचना है, नेगेटिव पॉइंट से अगर सेल्फ डाउट क्रिएट होता है तो सेल्फ डाउट को मैम कॉन्फिडेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए? देखो, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आया तुम्हारा कि भाई हम ये डिसीजन लेंगे तो ये अच्छी चीजें होंगी। फिर नेगेटिव है, ये हमने डिसीजन लिया तो नेगेटिव चीजें हैं, हम लिख रहे हैं ये चीजें, ठीक, लिखा
अब माइंडफुल हम हो ही गए कि भाई पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। जब हमने इतने माइंडफुल हो गए कि ये नेगेटिव है, तो हमें इसका पालन कर क्यों करना है? लेकिन मैम जो नेगेटिव है उससे एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है ना, सोच के उसके बारे में अगर नेगेटिव पॉइंट के बारे में सोचेंगे तो सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ उस नेगेटिव पॉइंट को मैम कैसे हम ओवरकम करें कि हम पॉजिटिव रहें हमेशा। ये सोचो कि हम इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करें, है ना? सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे कोई इवेंट करा रहे हैं हम, उसका पॉजिटिव भी है कि सबको मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, और नेगेटिव ये है कि हम कहीं खो जाएंगे भीड़ में, है ना? तो इस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है इसके बारे में सोचो, है ना? हम खो जाएं, हमारा जो पोर्शन है वो हमने दे दिया 100% स्टेज पे, ठीक है? अब हमें खोना नहीं लोगों के बीच। तो ये जो है, जो हमने बोला है उसको राइट अप कर लो, उसको पब्लिश करा लो, 10 लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इससे तुम्हें और लोग जानेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ तो 10 लोग तुमको जान रहे हैं, वो तुमने राइट लिखा, न्यूज़पेपर में दे दिया, पूरा शहर तुमको पढ़ रहा है। तो इससे तुम खो नहीं रहे हो, इससे तुम और लोगों के बीच जा रहे हो। थैंक यू मैम। टाइम हो गया, ठीक है, लास्ट लेते हैं, लास्ट। मैम जैसे कि हम कोई भी चीज लर्न करते हैं तो मतलब लर्निंग के पीछे मैम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है? जैसे कि हमें कोई चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है, कोई चीज बहुत देर से याद होती है, कोई चीज एकदम याद ही नहीं होती। तो मैम इसके पीछे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? ब्रेन हम किसी चीज को कैसे लर्न करता है? एक चीज होती है इंटरेस्ट, रुचि, है ना? हम यहाँ से, कोई मॉल है आसपास? चलो कुछ है, चलो कोई मॉल है, हम जा रहे हैं, का नाम क्या है? आदर्श। आदर्श को ये दिखेगा कि भाई कौन कौन सा ब्रांड के कौन कौन से शोरूम है रास्ते में, कितने हैं उसको सब पता है। एक्शन, लिबर्टी, सियाराम, ये वो सब पता है। काजल को नहीं पता है कि कौन कौन सा ब्रांड का शोरूम है ना? काजल को ये पता है, चाय पीती है? काजल को ये पता है कि रास्ते में पूरे यहाँ से मॉल तक कितनी चाय की दुकान है, ठीक? तुम्हें नहीं पता है कितनी चाय की दुकान है, तुम्हें सारे ब्रांड के शोरूम्स दिख रहे हैं, उसको सब दिख रहा है कितनी चाय की दुकान है, उसको सब पता है ये अदरक वाली है, ये इलायची वाली है ना? वो मसाला वाली रखता है, कौन सी बेस्ट है, किस टाइम मिलेगी, किस टाइम नहीं मिलेगी, उसको सब पता है, ठीक? जो तुमको पता है वो उसको नहीं पता है, जो उसको पता है वो तुमको नहीं पता। क्यों? इंटरेस्ट, है ना? हमारा जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो चीज हमें जल्दी याद होती है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्री कोई देखी हमने, मतलब कुछ चल रहा है उसमें, कोई पीछे बैकग्राउंड में बोल रहा है, डॉक्यूमेंट्री मूवी, हम 15 दिन, महीना भर चलो बाद हमको दिखाया जा रहा है कॉलेज में, भाई बैठ के देखना, तो हमको भूल जाएगी क्या था यार उस सीन के बाद, क्या बोला था, पता नहीं क्या घटिया दिखा दिए थे, याद ही नहीं। अब यहाँ हम जवान लगा देते हैं, ठीक है? बड़े स्क्रीन पे जवान मूवी, उसका एक एक सीन, एक एक डायलॉग सबको याद रहेगा। क्यों? इंटरेस्ट। जो चीज हम, जिस चीज के लिए इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, वो हमें जल्दी याद होती है। जिस चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं है वो हमें जल्दी नहीं याद होगी। तो इसका तरीका, जो चीज हमें जल्दी नहीं याद होती है, मैं क्या करती हूँ, कुछ चीजें बुक्स में भी कुछ चीजें होती हैं वो याद नहीं होती जल्दी, तो उसके साथ कोई एग्जाम्पल अटैच कर देती हूँ, ठीक है? इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, है ना? कि भाई इब्राहिम मैस्लो, ब्रैकेट में शाहरुख खान ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, है ना? पहला था रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार की मूवी। सेकंड स्टेप आता है बिलोंगिंगनेस, ठीक है? प्रेम, इनकी मूवी। जो चीज हम, जिस चीज के लिए इंटरेस्टेड है उसको हम बोरिंग
कोई चीज के साथ अटैच कर दें फिर याद करें। और मैम जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करो तो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं कोई बोरिंग चीज हो तो टहल टहल के याद करो, तो मैम कुछ नहीं है, ना बेड पे लेट के पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैम क्या ब्रेन हमारा जो मतलब एक्शन है उसको नहीं रिकॉर्ड करता है लर्निंग के टाइम पे? मतलब क्या एक्शन? मतलब कि जैसे हम लेट के पढ़े हैं तो हम एग्जामिनेशन हॉल में हमको बेड चाहिए तब हम लिख पाएंगे, हाँ मैम वैसा ही कुछ। ये मिथ है, कुछ नहीं है। एक बार जो चीज तुम्हारे लॉन्ग टर्म में चली गई वो कभी, लॉन्ग टर्म क्या, जो तुमने एक बार देख लिया पढ़ लिया तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस हो गया। कहते हैं ना इंटरनेट पे आप कुछ भी डाल दीजिए कभी नहीं डिलीट होगा, हमारे ब्रेन से कभी कुछ भी नहीं डिलीट हुआ हो सकता है, चाहे हम 1 साल के हो चाहे हम 80 साल के हैं, कोई चीज कभी डिलीट नहीं होती है, हर चीज रहती है यहाँ, ठीक है। और बैड एक्सपीरियंस होता है वो हम भूल चुके हैं लेकिन वो हमारे प्रेजेंट को हर हाल में डिस्टर्ब करेगा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसी तरह होता है ना। फोबिया है किसी चीज से, जरूर कभी कभी पुराने टाइम में हमारे किसी रिलेटिव को उसकी वजह से कुछ परेशानी हुई होगी या हमें हुई होगी, तो ये वो हिप्नोटिज्म वगैरह से निकलवा लिया जाता है। और मैम कोई एक टॉपर्स की मैजिकल रेसिपी होती है क्या कि जिससे वो शॉर्ट टर्म चीज को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई मैजिकल रेसिपी नहीं है, आपके स्टडिंग का तरीका होता है। कोई चीज को बार बार पढ़ते रहो नहीं याद हो रही है, छोड़ो, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पढ़ो। फिर मैंने कहा ना एग्जाम्पल अटैच करके पढ़ो, बट सबका अपना अपना तरीका होता है, वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अटैच करके पढ़ो। ओके थैंक यू मैम। अच्छा, वही मैंने कहा ना, अगर मन में कोई हेसिटेशन है बोलोगे तो कुछ तो असर होगा, कुछ नेगेटिव होगा कुछ पॉजिटिव होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाली तुमसे बात करना बंद कर देगी, उसको तो तुम कभी मना सकती हो। तुमको ये तो पता चल गया कि सामने वाली तुम्हारी इस बात से तुमसे नाराज हो सकती है ना, तुमको ये बात तो पता चल गई, तो नहीं बोलेगा तो ये तो पता ही नहीं चलेगी, बस यही सोचते रहो, तो वो तो फॉर्मल रिलेशनशिप हो गई ना। बोल दोगे तो कम से कम ये तो पता चल गया कि ठीक है इस बार बोल दिया, वो हर्ट हो गई, हमें अभी दोबारा नहीं बोलना, ठीक है। एक्सप्रेस करना, उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में वैसे ही उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सोचना, तो वही ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम तो चल ही रही है। तो वही मैंने कहा ना, पॉजिटिव उसका, नेगेटिव एस्पेक्ट, जर्नल बनाओ रात में सोने से पहले, है ना, 5 इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, फिर उसको प्रायोरिटी दो कि भाई इतना सोचने लायक ये बातें हैं, इतने इंपॉर्टेंस के देने लायक। लेफ्ट साइड में उसकी पॉजिटिव आउटकम्स, नेगेटिव आउटकम्स, ठीक, तुम्हें पता चलेगा नेगेटिव आउटकम्स जाते हैं, उनको पॉजिटिव में बदलो। क्या बेटा? मतलब मेरी पहले बहुत सारे फ्रेंड्स थी, तो मुझे फ्रेंड्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वो मेरी क्लोज होती हैं, मेरी क्लोज फ्रेंड होती हैं, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए मुझे हर्ट कर देती है। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, तो अब मुझे क्लोज फ्रेंड बनाने से डर लगता है। फ्रेंड्स से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लोज फ्रेंड बनाने से मुझे डर लगता है कि फिर से वो मुझे हर्ट कर सकते हैं। मैं किसी पे इसलिए बिलीव कर लेती हूँ, लेकिन उसको क्लोज होने में मुझे डर लगता है। देखो, अपनी लाइफ की तुम्हें प्रायोरिटी अब मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, ये प्रायोरिटाइज करना है कि भाई तुमको ये बातें नहीं निकालनी अपने से बाहर, ठीक है। निकालोगी तो ये सोच के निकालो कि भैया ये पब्लिक हुई तो कितना हार्म है। तो ये चीजें हमें अपने अंदर, अपनी फैमिली, अपने माता पिता से शेयर करनी है बस। कौन सी बातें हैं जो पब्लिक होने से नुकसान होता है,
फ्रेंड है, आप उसको बचपन से नहीं जानते हैं ना, आपको आप वही उतना जानते हैं जितना वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रायोरिटाइज करना है कि ये बातें आपकी पब्लिक हो तो क्या कितना आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो कुछ चीजें सिर्फ मम्मी पापा तक रखनी है, फ्रेंड्स को भी नहीं बतानी है, प्रायोरिटाइज करना है लाइफ में। थैंक यू सो मच। Yes, dear students. See, after having a very nice interaction with Aparna Pathak madam, so and we had a very nice interaction, the question and answers. One thing I came to know, that is the main problem is related to decision making. When you think about decision making, the right decision is based upon your values. So you have to identify your right values. What are those your values? So which will be helpful in taking the decisions. So for this, so which will be, when you think about, there is a one person called Dr. John Demartini. Dr. John Demartini, he has now I think he is at something around 70 years. From the age of 19 till this particular 70 years, he has read more than 40,000 books. And he has identified certain parameters. So I would like to give you the one particular work. Probably I will be interacting with you in the Monday 2 to 3. So probably I may talk on those aspects also. So that particular work to you is the value determination process. Value determination process by Dr. John Demartini. It's a free tool. We can work on that. I think it may take hardly 45 minutes to 1 hour and identify what is your values. And he says, if you work on your high priority actions, then that will definitely help you to get away from your low priority distractions. If you're not working on your high priority actions, then your whole day will be related, you will be working on your low priority distractions. That's why try to identify your high priority. So that is what is considered, and that is already very nicely mentioned by Aparna madam. We are very, very thankful for that. And this is a homework to you, and it may take 1 hour. So probably in the Monday, probably we may have a discussion on those aspects, right? Thank you. Thank you. थैंक यू मैम। हर बार आपका बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्टिव सेशन होता है। आपके लेक्चर के पहले भी मैंने इनको कहा था, कुछ आपका कुछ कंफ्यूजन रहे कुछ रहे तो आप मैम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। पीपीटी आपकी चलने नहीं दी बच्चों ने आज अच्छा प्रिपरेशन था वो भी, ठीक है। एंड सर का भी सेशन जो होगा वो नेक्स्ट आएगा, तो सर के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपका कुछ कंफ्यूजन है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो। ओके, थैंक यू सो मच मैम for lovely interaction students. So next time आगे भी बच्चों को कुछ issues रहेंगे तो they will interact. Thank you.